Welcome back to the 389th episode of Thought Behind Things. Today is the 8th of December 2023 and आज हमारे साथ मौजूद है नबील दुरानी all the way from Australia who is a PhD in AI and works as a artificial intelligence robotics, I would say specialist, but I don't know the exact title. He works on autonomous drones, the future weaponry जो कि AI driven है, the tech that is going to be used in the future wars. He also has a extensive experience in IT project management and IT services. He has a couple of companies that beyond the roles that he does, वो companies भी manage कर रहे हैं. But more than any of that, we spent a lot of time in this conversation trying to understand his story, and it's fascinating. He's a great storyteller as well. The way that he actually ended up in Australia, the way that he built himself up, it's a story of grit. It's a story of having faith and believing in himself and being able to create an incredible empire out of absolutely nothing. So there's a lot of that in here. We also discussed deeply the future of AI, how that could potentially impact our world and our society in Pakistan as well. And he particularly believes that AI के अंदर बहुत सारे future में potentially dangerous outcomes हैं that we need to begin to think of as a collective, as humanity and also as Pakistanis. Especially the economic implications of AI are pretty scary, and as Pakistanis, all of us need to really begin to think about what we're going to be doing in our future to align in the post-AI world order. अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. It really helps the algorithm. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताएं. Read all the comments and it really helps improve the quality of the conversation. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो do consider helping us through the Stripe link below. It will help us remain independent for as long as possible. But anyways, here is Nabeel Durrani on TBT, Islamabad studio. नबील भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for coming on the show. Jazakallah for the invitation. I just want to start this by trying to understand a little bit about where were you born and early life आपने कहाँ पे गुजारी, and tell me a bit about your education as well, primary, middle school, high school. मेरा ताल्लुक पेशावर से बेसिकली. तो पेशावर में पैदाइश हुई एक मिडिल क्लास फैमिली में. मदर जॉब किया करती थी इन एन NGO. फादर भी जॉब करते थे, वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो टीचिंग भी करते थे एंड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन US. तो जो मेरी एजुकेशन है वो पेशावर से हुई, गैरजन आर्मी पब्लिक स्कूल से. सो फ्रॉम अप टिल मैट्रिक मैंने वहाँ से की थी. एट वेरी नॉर्मल ग्रेड, ऑलमोस्ट कोई 55% मेरे ग्रेड आए थे वहाँ पे. How was Army Public School? It was good. This was Garrison Army Public School, so it's different to the Army Public School. What's the difference between? I think this was a bit better. You get a lot focused. We were the first batch, right? When we passed out from matric. अच्छा, interesting. तो अच्छा स्कूल था. co-ed था, obviously English education थे. And was it a big campus or was it like जिस तरह आजकल तो है ना घरों में schools हैं and I think it was medium. Okay. Yes, it was medium. Had some ground, some sports. Some ground, some sports, but smaller than Army Public School. Right. Yes. Makes sense. तो वहाँ से मैट्रिक स्टडी की थी. All the students जो मेरे साथ स्टडी किए करते थे वो they were quite well off. और आर्मी से उनका ताल्लुक था, बैकग्राउंड उनके आर्मी से थी. तो me and another fella we were poor as compared to them. Right. तो जब वहाँ से ग्रेजुएट किया तो अब ये सोच आई कि अब आगे कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो आई वेंट टू फजाइया डिग्री कॉलेज पेशावर के. तो वहाँ मेरे सारे बैचमेट्स स्टडी करने गए थे एंड आई ऑब्वियसली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मैंने कहा कि चलें वहाँ पे स्टडी करेंगे. तो जब वहाँ पे एंट्री टेस्ट दिया तो मैं क्लियर हो गया. तो उन्होंने जो है वो एक साथ 18,000 रुपीज़ की डिमांड की. अच्छा. Which was a lot of money for us at that time. तो मैंने अपनी मदर को कॉल करके कहा कि 18,000 रुपीज़ वो एडमिशन के मांग रहे हैं. शी सेड कि तो बहुत पैसे हैं, ऐसे करो जो जहाँ पे आपने और एंट्री टेस्ट दिए वहाँ पूछो. तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर और साथ ही FG डिग्री कॉलेज मैंने यहाँ भी टेस्ट दिए हुए थे. तो मैं जब वहाँ गया तो देखा मेरा FG डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन लिस्ट में आया हुआ है. राइट. तो मेरी मदर ने कहा कि आप पूछें उनसे कि कितनी एंट्री फीस है. उन्होंने कहा 3,000 for a year. Right. मेरी मदर Because this is a government school, right? Government college, FG degree college.
तो मेरी मैडम ने कहा कि फ़ौरन चुपचाप वहाँ पर एडमिशन ले लो और फीस पे कर दो. How different do you think this government college was compared to the education that you'd received at Garrison APS? Big difference, absolutely big difference. In what areas? In the level of focus and the amount of education that gets provided to you. So government college है obviously, पेशावर के सारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ पे स्टडी करते हैं. इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कोई अटेंडेंस नहीं है, कभी भी आप इन एंड आउट हो सकते हैं. और एग्ज़ाम्स भी जो थे वो ऑब्वियसली बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, लेकिन जो इंटरनल एग्ज़ाम्स थे इतना फोकस नहीं दिया जाता था. तो व्हाट आई लर्न देयर इन दोज 2 years, ऑब्वियसली मैं बहुत अपसेट था कि मेरे सारे दोस्त वहाँ चले गए, मैं यहाँ पे रेलेवेंट नहीं हूँ. लेकिन इट टॉट मी अ लॉट कि जो बाकी जो जनरल पब्लिक थी, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़की की तरह पाला है लिटरली. घर से बाहर नहीं जाने देना 7 बजे के बाहर, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट. आपने पढ़ाई करनी है और आपने घर पर रहना है, ठीक है. तो उसके बाद जब मैं ऐसे ऑल बॉयज़ कॉलेज में आया तो आई लर्न सो मच कि यार किस तरह बिहेवियर किस तरह होता है लड़कों का, बाकियों का, दुनियादारी क्या होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है. एब्सोल्युटली स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी मैंने काफ़ी ज़्यादा. तो वो 2 साल मुझे ज़रा ह्यूमन बिहेवियर सीखने में लगे. एंड वहाँ से मैंने जब पास आउट किया तो मेरे 59% मार्क्स आए. और आई वांटेड टू गो इन एयरफोर्स, मुझे पायलट बनना था. तो 1% से मैं रह गया उसमें, क्योंकि 60% वॉज द मिनिमम. ऑल्दो आई कुड एक्चुअली क्वालिफाई फॉर दैट, लेकिन किसी ने मेरे जहन में डाल दिया था कि नहीं 1% वो नहीं ग्रेस नहीं छोड़ते. तो आई डिडंट इवन अप्लाई फॉर इट. तो उसके बाद मैं इंग्लिश मेरी उस टाइम अच्छी थी काफ़ी. तो मैंने क्या किया था कि मैंने IELTS का एक कोर्स कर लिया था. और मैंने जब IELTS क्लियर किया तो एट दैट टाइम आई गॉट 7 band ईच एट द एज ऑफ 17. ठीक है. तो मैंने IELTS टीच करना शुरू कर दिया फॉर अ बिट ऑफ पॉकेट मनी. साथ साथ घर से लड़ के एक कॉल सेंटर था इन पेशावर, दी ओनली कॉल सेंटर. तो घर से लड़ाई हुई मदर से स्पेसिफिकली कि मुझे कमाना है और मुझे वहाँ पे जॉब करनी है. तो मैंने सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया BBA के लिए. और साथ साथ जो है मैंने रात को वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दिया. और दिन में मैं एक दो स्टूडेंट्स को IELTS की कोचिंग भी दी. और जॉब जो थी वो लार्जली पाकिस्तान से बाहर के क्लाइंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज, all in US and UK. Yeah, we talk about calling cards and selling mortgages. Interesting. तो रात को 9 बजे से शुरू होती थी, सुबह 6 बजे तक वो जॉब थी. And how much would that pay you? 7 grand at that time. 7,000 रुपए per month. Per month, yes. Interesting. Was there a bonus structure there as well? There was, but I never heard any. Okay. So obviously it was a bit of a sham. It was a bit of a scam as well. तो bonus किसी को नहीं मिलता था. लेकिन we were students, तो कुछ सीखने के लिए. Any money was good money. Right? Good money. Half of the money we'd spend there. चचा होते थे, उनसे वो कुछ खा पी लिया तो वहाँ पे स्पेंड कर लिया. बट इट्स गुड एक्सपीरियंस. बाहर जाने का मुझे शौक ऐसे हुआ कि मेरी आंटी थी US में. शी लिव्ड देयर फॉर 20 odd years. तो वो टेक्सास में थी. तो मेरी मदर से बात चल रही थी कि जी नबील को बाहर भेजना है, US सेंड करना है. तो अभी मेरा जहन नहीं बना था. तो मैं एक दिन घर पे बैठा था. मुझे आदत थी अखबार पढ़ने की. तो मैंने अखबार रीड किया तो उसमें एक ऐड आई हुई थी कि आप उनको एक IELTS के ट्यूटर की ज़रूरत है पेशावर में. सो आई वेंट फॉर इट. तो मैं ये यूनिवर्सिटी रोड पे एक इंस्टीट्यूट थी. मैं वहाँ पे गया और जाकर मैंने वहाँ के बॉस से बात की. तो उनको मैं बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा यार आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, 7 band ईच आपने लिए हैं, तो यू क्वालिफाई फॉर इट. एंड इमेजिन अ 17-year-old बॉय, ठीक है, गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एज अ ट्यूटर. तो मैंने पढ़ाना किसको था, 20-30 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको. तो ही सेड कि ठीक है आपकी 12,000 रुपीज़ सैलरी होगी, आप ऐसे करें आप 2 days के बाद आके अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं. यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू डन. मैं बहुत खुश था कि चलें आई एम गोना बी एन ऑफिशियल ट्यूटर ना, और पढ़ाऊँगा. और आई हैड माई ह्यूज होप्स फॉर द फ्यूचर. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आए वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की
مارکیٹس خاص کر پاکستانی مارکیٹس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ارج یو ٹو چیک آؤٹ سرمایہ فائنینشیلس پلیٹ فارم. اٹس اے ریمارکیبل پلیس جہاں پر آپ کو بہت انٹرسٹنگ رپورٹس کے تھرو ڈیٹا بھی ملتا ہے, انویسٹمنٹ کی ایڈوائس بھی ملتی ہے, اور خاص کر ان کی ٹریننگز جہاں پر ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو کرپٹو اور اسٹاک مارکیٹ اور کموڈیٹیز اور ایسٹس کے اندر ٹریڈ کر کے پیسے کمانا سکھاتے ہیں. سو چیک آؤٹ دا پلیٹ فارم اینڈ چیک آؤٹ دیئر ٹریننگز. ناؤ بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ. 2 دن کے بعد میں وہاں پہ گیا, اور میں جب وہاں پہ انٹر ہوا تو دیکھا, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے, گلاس آفس تھا, جو باس تھا وہ بیٹھا تھا. اتنے میں جو میرا ٹیوٹر تھا جس نے مجھے IELTS کوچ کیا تھا وہ انٹر ہوا, اور ڈائریکٹلی ہی وینٹ اسٹریٹ ٹو دا باس, اور وہاں اندر کوئی بات چیت چل رہی ہے ان کے بعد میں بیٹھا ہوں. تو 10 منٹ کے بعد گلاس ڈور اوپن ہوا تو اس نے پیون کو بلا کے باس نے کہا کہ یہ نئے IELTS کے ٹیچر ہیں آج سے, ان کے لیے کانٹریکٹ لے کر آؤ. تو اس پیون نے کہا کہ سر وہ جو نبیل بیٹھا ہوا باہر اس کا آئی ایم لسننگ ٹو دا ہول تھنگ. کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے, اسے گھر بھیجو. تو دیٹ بروک مائی ہارٹ لٹرلی, اینڈ آئی کرائڈ when I came out. میں نے کہا یار یہ پاکستان میں میری قدر نہیں ہوگی. یہاں تو ایج دیکھ رہے ہیں, I was 45 kilos, very slim. تو یہاں پہ میرا کچھ نہیں بنے گا. سو آئی کیم ہوم, میں نے مدر کو کہا, میں نے کہا یہاں میرا کچھ نہیں بنتا, مطلب یہاں مجھے سب ایج سے اور فزیک سے دیکھ کے جج کر رہے تھے, ناٹ لوکنگ ایٹ مائی اسکلس. تو دیٹس when we decided کہ بھائی اب کہیں جانا ہے. اب اس ٹائم قسمت کا کرنا یہ ہوا, یہ میں ویورس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے. کہ جانا میں نے US تھا, اس ٹائم یہ نیوز آئی کہ US اب ویزاز نہیں دے رہی اسٹوڈنٹس کو, جو حالات خراب ہو گئے ہیں پاکستان US کے بیچ میں, تو دے ناٹ گرانٹنگ اینی مور ویزاز, تو فائدہ نہیں ہے وہاں پہ اپلائی کرنے کا. Right. And what year is this? This is 2007. Okay. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب کہیں تو جانا ہے, جیسے ہر دیسی پاکستانی کا خواب ہوتا ہے UK جانے کا, تو ویسے چلیں UK کے لیے اب یہ ٹرائی کر لیتے ہیں. تو ہم ایک کنسلٹنٹ کے پاس گئے صدر میں, اور اس سے بات کی, اور کسی لنڈن کالج آف کامرس میں ایڈمیشن لے لیا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گو آؤٹ. ٹھیک ہے, ایڈمیشن لیا, اس کو 2 لاکھ روپیز ہم نے پے کیے. اچھا. اور 1 ہفتے کے بعد نیوز آئی کہ وہ تو لاک کر کے بھاگ گیا, UK بھاگ گیا. مجھے میرے ایک فرینڈ نے, اس نے بھی اپلائی کیا, تو اس نے کال کی کہ نبیل صدر پہنچو. میں نے کہا واٹ ہیپن, کہتا ہے وہ تو بندہ بھاگ گیا, ایک کنسلٹنٹ ہی بھاگ گیا. اچھا. تو میں وہاں سے پہنچا, میری مدر آفس چھوڑ کے آئیں, تو 4th فلور پہ اس کا آفس تھا, وہ تالا لگا ہوا, لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک ہلا گلا مچی ہوئی ہے. 2 لاکھ روپے ہمارے ڈوب گئے, اینڈ اٹ واز اے لاٹ آف منی فار اس. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اب تو میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. تو 2 مہینے وہی مایوسی میں سٹی یونیورسٹی میں جاتا تھا, آنا جانا لگا ہوا تھا. تو ایک انکل فیملی فرینڈ تھے, وہ گھر پہ آئے, تو ایسی بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, جاؤ کچھ اور ٹرائی کرو, کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ, یہاں تو فراڈ چلتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں پیسے میں دوں گا, مجھ سے قرض لے لینا, اینڈ بیکاز وی کوڈنٹ افورڈ اٹ, تو کہہ رہے ہیں مجھ سے قرض لے کے آپ چلے جانا, کرو اپلائی. تو ہم نے ایک دوسرا کنسلٹنٹ ڈھونڈا, پھر سے ہوپ اسٹارٹ ہو گئی. تو لٹرلی یہ جس اسٹریٹ میں یہ جو کنسلٹنٹ فراڈ کر کے گیا تھا نا, اس کے نیکسٹ اسٹریٹ میں یہ کنسلٹنٹ تھا. تو ہم اس سوچ سے گئے تھے کہ یہ بھی ہمیں چونا لگائے گا, اور UK کا اس سے بول کے گئے تھے. ہم انٹر ہوئے, اور آئی کیڈ یو ناٹ ود ان این آور ہی سولڈ اس آسٹریلیا. اچھا. اینڈ مجھے آسٹریلیا کا ABC بھی نہیں پتا تھا, میں کرکٹ نہیں دیکھتا تھا, مجھے کچھ نہیں پتا کہ آسٹریلیا کیا ہوتا ہے, کون سی کنٹری ہے. 1 گھنٹے میں اس نے ہمیں What was his pitch? I mean UK is very for Pakistanis, like you mentioned, ہر دیسی پاکستانی کا خواب ہے UK. آسٹریلیا میں ایسا کیا ہے جو کہ آپ UK سے ہٹا کے آسٹریلیا میں لے کر جاتے ہو؟ واٹ واز ہز پچ اسینشلی؟ اس نے ہمیں کہا کہ UK جو ہے نا گاؤں بن گیا, اتنا دیسی ہے وہاں پہ, PR وہاں نہیں ملتی, پاسپورٹ نہیں ملتا, بہت ایشوز ہیں, جاب نہیں ملے گی, گو ٹو آسٹریلیا, اٹس ہیون. 2 سال میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا, جابز ہی جابز ہیں, آپ انٹر کریں گے تو ویلکم کریں گے. بٹ ہی سولڈ اس آسٹریلیا بیسکلی, لائف اسٹائل سیل کیا, 70% اس میں جھوٹ تھا. ٹھیک ہے, تو 1 گھنٹے میں میری مدر کو کنونس کر لیا بیسکلی, مجھے تو کر لیا, میری مدر کو. میری مدر نے سب وقت دکھایا کہ بیٹا سکسیزفل ہوگا, گھر چلے گا, سب کچھ ہوگا, مڈل کلاس مینٹالٹی. تو اب ہمیں وہ جانے نہیں دیا اس نے. فوراً اس نے میپ کھولا, مجھے کہ بیٹا آپ کہاں جانا چاہیں گے. فرسٹ ٹائم آئی ایم لوکنگ ان آسٹریلین میپ, اور مجھے ورڈ اچھا لگا کوئنس لینڈ کا. میں نے کہا کوئنس لینڈ. کہتا سے نو مور. باقی کہتا آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے مدر کو دیکھا, میں نے کہا آئی ریئلی وانٹ ٹو گو بیک ان IT. FSC میں نے کمپیوٹر میں کیا تھا, ٹیکنالوجی میں, اور میں اب BBA اسٹڈی کر رہا تھا. مدر کے کہنے پہ فائنینس میں تھی. تو مدر نے کہا کہ چلو IT اسٹڈی کر لو. تو آپ یقین جانیں کہ اس نے یونیورسٹی چوز کی, اس نے سٹی چوز کی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں میں جا رہا ہوں. 1 ہفتے کے اندر اس نے جو ہے وہ
But so how did these admissions happen back in the day? I mean, my understanding is admissions have an entire process, right? Like transcripts hain, letter of purpose statement hai, this and that, ye wo. Was this just like, tell me about the admissions process. How did he manage to do any of that? एडमिशन प्रोसेस उसने इस तरह से किया था कि उसने हमें कहा कि आप ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको टोटल जो है वो आपको हैंड ओवर ऑफ़र करूँगा, ठीक है. तो उसने हमसे हमारी ट्रांसक्रिप्ट्स, मैट्रिक की, FSC की तमाम चीज़ें उसने हमसे मांगी. उसी टाइम भी ये था कि मिनिमम 50% आपके स्कोर होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए. इक्विवेलेंस वगैरह बनवानी थी HEC से या उसके बगैर ही हो गया? नहीं, उसके बगैर ही. राइट. कोई आपको वेरीफाई नहीं करना था. कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए था पुलिस से, वो बनवाया. फिर बैंक स्टेटमेंट की बात आई थी, वी हैड नो मनी. उसी ने किसी कॉन्टैक्ट दिया, बैंक का कॉन्टैक्ट दिया कि भाई इस बैंक से बात करो, दे गिव आउट लोन. उस टाइम पे मुझे याद है हमने 40 लाख रुपीज़ का लोन लिया था. अच्छा. ऑन इंटरेस्ट. Oh wow. Or so the family took a bet on you essentially. Big time. Like if you'd fail, I'd come to that in debt for life essentially, because पाकिस्तान से आप 40 लाख वापस करना शुरू करते हो, आप पूरी ज़िंदगी गुजार देते हो. 40 लाख का लोन उन्होंने मेरे लिए लिया था किसी बैंक से, और उस पर इंटरेस्ट ही दे रहे थे. और अब वो एजेंट ने कहा कि ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ कर लिया आपके लिए, आप इस फॉर्म पे साइन करें. ठीक है. उसने फॉर्म पे साइन करवाया, बाकी सब प्रोसेस उसने किया. एंड ही टोल्ड अस कि जो वीज़ा का प्रोसेस है वो 6 months का होता है. ठीक है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट दिस इज़ नवंबर एंड या दिसंबर का स्टार्ट था. और इसने कहा कि मैंने आपका जो सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया है दैट इज़ February, एंड ऑफ Feb, मार्च में शुरू हो जाएगा वो. तो लेकिन आपके चांसेस बहुत कम है इसलिए कि 6 months लगते हैं वीज़ा आने में. तो आप बेटा तैयारी करो जुलाई अगस्त की. तो हियर आई वाज सिटी यूनिवर्सिटी में अपनी कॉल सेंटर की जॉब कंटिन्यू रखी हुई थी, साथ थोड़ी ट्यूटरिंग भी करा रहा था. आप बिलीव करें विद इन अ मंथ आई गॉट माई वीज़ा. अच्छा. विद इन अ मंथ. एडमिशन वीज़ा बहुत सब कुछ विद इन अ मंथ. फ्रॉम द डे वी फाइल्ड आवर वी पेड मनी टू द एजेंट. 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा आया. और वीज़ा आया तो मुझे अब पता था क्योंकि मेरी ओरिएंटेशन की डेट थी 24th of February, और अभी था 1 March. मुझे पता माई ओरिएंटेशन डेट इज़ पास, तो अब तो चांस नहीं है. मैं बैठ के खामोशी से भाई जुलाई में जाएंगे, अगस्त में जाएंगे. उसकी कॉल आई संडे को और कहता आपका वीज़ा आ गया. तो मैंने कहा अब तो पॉसिबल नहीं. कहता नहीं, अगर 1 वीक में पहुंच सकते हो यू कैन कंटिन्यू योर क्लासेस. अब आप टिकट नोटिस करें, टिकट के पैसे नहीं. हाँ. लड़के ने कभी सिटी से बाहर अकेले ट्रैवल नहीं किया. हाँ. वो जा रहा है एक डिफरेंट कंट्री. एकोमोडेशन का पता नहीं, कोई दोस्त नहीं. अच्छा, वो डिफरेंट कंट्री भी नहीं है ना, वो इज द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट्स लिटरली वो सब कुछ उल्टा है ना वहाँ पे. वेदर भी उल्टा है, सिस्टम भी उल्टा है, तो इट्स, और उनका एक्सेंट भी उल्टा है. आप कुछ समझ नहीं आएगा. How was your English at the time, by the way? You mentioned के you did well in IELTS, but there's a difference always, Pakistan particularly, between written English and speaking, right? Because आपको इतनी आदत नहीं होती, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी होती, और आपके इर्द गिर्द स्पोकन इंग्लिश मोर ऑफन देन नॉट आपकी प्रैक्टिस से आती है, और जितने आपके इर्द गिर्द लोग बोल रहे हैं. So were you good at communicating in English as well? No, I was quite fluent in written, and listening was very good, but I was very shy. So मेरी जो स्पोकन इंग्लिश थी वो बहुत पुअर थी इसी वजह से. और ऑब्वियसली कोएड में पढ़ने की वजह से भी बहुत ही शाइनेस थी. लड़कियों के सामने बात नहीं कर सकते थे इंग्लिश में, और एक कल्चर भी नहीं था, अपनी फैमिली में कल्चर नहीं था. तो आई वॉज क्वाइट पुअर एट दैट. आई हैव एक्चुअली लर्नड इंग्लिश फ्रॉम वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून्स एंड रेसलिंग. दैट्स हाउ आई पिक्ड अप इंग्लिश. मोस्ट ऑफ अस. और फिर वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया जाके जो मैंने सीखा वो सीखा. Right. Even call center में भी obviously because you don't have anyone sitting in front of you. phone पे बात करना is a different thing. Once you're sitting in front of someone else, you need that confidence, जो मुझ में नहीं था honestly. Right. तो वो सब वहाँ जाके improve हुआ और build up मैंने किया उसको. Interesting. तो अभी within a week मेरी मदर ने फिर लोन लिया, टिकट कराया, and within a week सब कुछ अरेंज हो गया. And here I am. I'm standing at the airport. इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में टिकट है. अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठूंगा. That's what I am thinking. First time ever. ठीक है. और मेरी मदर ने मेरे हाथ में एक एनवलप थमाया. एक एनवलप था, बंद था. और मेरी मदर ने she looked dead in my eyes. She's a very strict woman. God bless her. कहती हैं कि बेटा आपके 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दिया, अब जितना पैसा है वो ये इस एनवलप में है, कामयाब नहीं हुए तो वापस नहीं आना. वो सारी एक्साइटमेंट एंग्जाइटी मेरा रंग पीला हो गया ना, ये क्या कह रही हैं. तो खैर उनको सी ऑफ करके मैं प्लेन में बैठा हूँ.
اور جب envelope کھولا تو there it was $2,500 AUD. ان کی کل جمع پونجی تھی, لٹرلی کل سرمایہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ آپ کو دے دیا, ڈالر ایٹ دیٹ ٹائم واز 45 روپیز, یہ آپ کو دے دی, اب واپس نہیں آنا آپ نے. اور آپ امیجن کریں اگلے 3 مہینے بعد مجھے 10,000 کی فیس پے کرنی ہے, اکاموڈیشن میرے پاس نہیں, جاب میرے پاس نہیں. تو دیٹس ویئر مائی جرنی بگین. تو میں ویورس کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہوپ لوز کر لیتے ہیں, جانا میں نے US تھا, پیسہ جیب میں ایک نہیں تھا, اور پہنچ میں کہاں گیا, آسٹریلیا. تو دیٹس اللہ کی پلاننگ از ڈفرنٹ than how we plan it. Right. So that was my journey all the way up to Australia. How was Australia when you landed there? Again, beyond the education, now this is a different culture, and you coming from very limited exposure to different aspects of the world within Pakistan even. Now you've suddenly landed in Australia, and ایک infinite وہ ہے نا, culture shock بھی ہے, چینج ان انوائرمنٹ ہے, ویدر ڈفرینٹ ہے, جانور ڈفرینٹ ہے یار. ٹیل می اے بٹ اباؤٹ دیٹ. اٹ واز ڈیفینیٹلی اے کلچر شاک جو آپ موویز میں دیکھتے ہیں, بیکاز ہم نے تو یہی دیکھا تھا موویز کے تھرو. US دیکھتے ہیں آپ نارملی, اٹس ٹوٹلی 360 degrees. کلچر ڈفرینٹ, لینگویج آپ کو لٹرلی یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اے سنگل ورڈ آف دیئر سلینگ اینڈ دیئر ایکسینٹ. لوگ اچھے ہیں, پیپل آر ویری نائس, اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم پیپل آر ویری نائس. 2009 میں اتنی امیگریشن نہیں تھی تب بھی جتنی اب ہے, جتنے اب دیسیز وہاں آ چکے ہیں, لیکن تب بھی دے ور کوائٹ اکاموڈیٹنگ, اور آپ کی ہیلپ کرنے والے, نہ کہ آپ کو مطلب دھتکارنے والے. تو اس کیس میں نے ان کو بہت ہی اچھا پایا ہے. فار ایگزامپل تو آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ ملتی ہے ہر جگہ پر. فار ایگزامپل جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میری کسی سے ایجنٹ کے تھرو ہی بات ہوئی تھی, کوئی رینڈم بندہ تھا, پاکستانی پٹھان تھا, ویری گڈ پرسن. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو لینے آ جاؤں گا ایئرپورٹ پہ, اور ان کے پاس کوئی کمرہ تھا تو وہاں شیئر کر لیں گے. اب جب میں وہاں لینڈ ہوا تو میرے پاس ان کا نمبر تھا, تو میں نے, اب میرے ساتھ کوئی 2 گورے تھے, کپل تھا, تو جہاز میں ان سے گپ شپ ہو گئی تھی, بیکاز میرا حلال میل پہلے سرو ہوا, تو ان کا بعد میں کھانا سرو ہوا. تو انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا کہ ایکسکیوز می, یہ آپ کا حلال میل ہے. مجھے آدھی سمجھ آ رہی ہے, میں نے ان کو سمجھایا کہ میں مسلم ہوں اس لیے میرا میل پہلے آیا. دیٹس ہاؤ وی گاٹ along. تو ایئرپورٹ پہ ساتھ اترے, میں نے ان کو اپنی پوری اسٹوری بتا دی, میں فرسٹ ٹائم پاکستان سے آیا ہوں, میں نے کبھی کوئی دنیا نہیں دیکھی, اور اس طرح مجھے لینگویج نہیں آتی. تو دے لائک ہمارا بیٹا بھی 16 سال کا ہے, از لائک یور ایج اینڈ گاڈ بلیس یو, ہم ول ہیلپ یو. تو انہوں نے, ان کا میں نے فون یوز کر کے میں نے کال کی اس نمبر پہ, تو وہاں کسی اور نے کال اٹینڈ کی, اینڈ وہ کہتا ہے کہ وہ بھائی جس نے آپ کو کہا تھا وہ تو پاکستان چلا گیا کل. تو اس لائک ابھی رات کے 12 میں کیا کروں نا, میں کہاں جاؤں. کہتے نہیں ڈونٹ وری, اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اور آپ ایسے کہنا نا یہ ایڈریس لے لو, ہم سب ٹیکسی ڈرائیور ہیں, آج سیٹرڈے نائٹ ہے, ہمارے کمانے کا آج ہی رات ہے, ہم نہیں آ سکتے, آپ ٹیکسی لیں باہر سے اور اس ایڈریس پہ پہنچ جائیں, کوئی آپ کو میٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. تو میں ان کو سی آف کیا انگریزوں کو, اور میں نے باہر سے ٹیکسی لی, وہ بھی اچھا آدمی مل گیا. ابھی آپ یہ 1 بجے, رات کا 1 بجا, کوئی سبب ہے اینرلی اس کا نام ہے. تو اب میں وہاں پہ پہنچا ہوں, اور فرینچ ٹیکسی ڈرائیور, اس کو میں نے اپنی اسٹوری بتا دی ساری, میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں سب کچھ. ڈرا ہوا تھا کہ میں یہاں پہ کیا ہوگا, جیب میں پیسے, اتنے پیسے بھی ہیں جیب میں. تو ابھی ایک گھر ہے, کوئنس لینڈ ہومس جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نیچے کوئنس لینڈ کدھر ہے؟ کوئنس لینڈ, my understanding is Australia is just 3-4 cities with 90% of the population largely. It's not very, they're all coastal. سمندر کے کنارے پہ سارے ہیں, اور کوئنس لینڈ از ویری فار سائڈ. Okay. Yes, so the moment آپ یہاں سے جب جاتے ہیں, when you're flying, آپ first you hit Perth. Okay. And then from Perth 4.5 hours کی flight ہے to Brisbane. Brisbane is the city of Queensland. Queensland is a state. It's a state. I see. So you went to Brisbane. I went to Brisbane. Yes. I see. Brisbane تو سنا ہے میں نے کرکٹ میں. ہاں ٹھیک ہے. Brisbane is a big city. Yes. Right. تو وہاں میں پہنچا تو رات کا ٹائم تھا, اندھیرا, اور اس گھر کے سامنے کوئی نہیں. 10 منٹس میں ناک کر رہا ہوں, وہ فرینچ ڈرائیور کہتا ہے کہ کہاں کوئی نہیں ہے, میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میں نے اس کو ایموشنل اسٹوری بتا دی تھی. وہ کہتا ہے میں آپ کو بیک پیکرز لے کے جاؤں گا. آئی ڈنٹ ایون نو بیک پیکرز کہتے کیسے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے, تو بیک پیکرز ہم ویٹ کرو. تو 10 منٹ ناک کیا, کوئی نہیں آیا. اب میں اوپر کھڑا ہو کے ناک کر رہا ہوں اسٹیئرس پہ, وہ نیچے رہتے تھے. تو جب میں گاڑی میں واپس بیٹھنے لگا کیب میں, تو آپ نیچے سے دروازہ کھولا, اور ایک گورا لکنگ پٹھان تھا, اس نے بال بلانڈ کیے ہوئے تھے, شارٹس پہنے ہوئے تھے, ٹوٹلی ویسٹرنائزڈ. وہ انٹر ہوا, اس نے پخیر رالی اور کر کے. میری پشتو 0 تھی. میں I'm a پٹھان. اچھا, I'm a پٹھان, ڈیڈ پٹھان ہے, پر مجھے پشتو نہیں. lived in Peshawar all your life. میں نے ساری پشتو وہاں سیکھی,
ऑस्ट्रेलिया में. How interesting. सारी ज़िंदगी पश्तो समझ आती थी थोड़ी सी, मैं बहुत एक वर्ड नहीं सकता था. Right. तो उसने मुझसे बात की, मैंने सी ऑफ किया उसको कैब को. अब मैं अंदर एंटर हुआ. ऑब्वियसली हम गरीब मिडिल क्लास हैं लेकिन इतने नहीं हैं. अपना रूम था, अपने घर में एक बेड था, सब कुछ था. These guys were living in a garage. एक गैराज है, वहाँ पे 5 मैट्रेस डले हुए हैं, साथ एक छोटा सा किचन बना हुआ है और बाथरूम. Right. That's their कुल सरमाया. Very nice people. और ये सारे क्या थे, मतलब were they All working cabbies. there? Okay. All पश्तून्स, पठान थे, सारे क्या टैक्सी ड्राइवर्स थे और एजुकेटेड लोग थे. लेकिन कैब में बहुत पैसा था उस टाइम पे, तो सब कैबीज थे. Right. तो अब मुझे कहता है कि यहाँ सो जाओ. खाना खिलाया, आज यहाँ सो जाओ कहीं पे. अब मेरे जेब में पैसे हैं, मैं कपड़े भी नहीं चेंज कर रहा, मैं वैसे सो गया रात को. अब ये अकेला था. सुबह मैं 7-8 बजे सुबह मेरी आंख खोली तो मेरे आसपास 6 बंदे बैठे हुए और वो शोर मचाया ना, पखेर रहा ले हो, पेशावर से आए हो, हमारा भाई आया, इस तरह के ना बहुत ही अच्छे से. और मैं अब मेरी आंख खुली है तो मैं फ़ौरन जो है वो डर सा गया. तो खैर उनके साथ टाइम गुजरा, उनके साथ बैठ खाना पकाना सीखा, उनके साथ वो लाइफस्टाइल सीखी, पश्तो सीखी. उनका एक फ़नी मुझे इंस्टेंस याद है कि अपने घर में जिस तरह ब्रॉटअप हुआ है ना, वैसे वो तो हुआ है. कभी सिगरेट नहीं, कभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं. वहाँ दूसरे दिन बैठ के मैं नस्वार कूट रहा था कि वो नस्वार खाते थे. तो वो कोई नस्वार लेकर आए थे किसी कालों से, तो मुझे कहते हैं नस्वार कूट के. तो आई वाज सिटिंग देयर ग्राइंडिंग द नस्वार फॉर देम. तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ. फिर फर्स्ट जॉब जो मैंने वहाँ शुरू की अपने. Tell me about, I mean, so you had your first semester fees was paid off and you had like $2,500 for living expenses. How far does $2,500 take you, or at least took you at the time? At that time you needed at least $300 a week. Right. For your general expenses. Including the rent that you were paying these guys for the spot in their garage. $60 a week for the spot. Right. बाकी groceries was combined, तो आपके काफ़ी बचत हो जाती थी. So तकरीबन 2 महीने का आपका living cost थी और बाकी tuition जो है वो अलग. Right. So okay. So then you obviously had to find a job. Definitely. And visa के ऊपर you could work full time, or was there like a 20-hour limit? 20-hour limit. Yes, but no one works 20 hours there. You can't survive on that. तो डेफिनेटली फर्स्ट जॉब मुझे मिली इवन सेकंड डे पे. वो थी कैटलॉग डिलीवरी. न्यूज़पेपर जो होता है चंक मेल, वो डिलीवर करना होता है. तो मैंने किसी इन्हीं पठान भाई की मैंने गाड़ी रेंट पे ली उनसे, कि रेंट पे मैंने कहा मुझे दे दें, हेल्प कर दें. तो उनकी गाड़ी ले जाते थे हम किसी और सबब जाके. वो पूरी बूट जो है वो फिल होती थी. फिर खरा के गैराज भरता था और 12 डिफरेंट टाइप्स के कैटलॉग थे, एक के ऊपर एक रख के उसको उसके ऊपर टेप चढ़ा के, और वो फिर आपने पूरे मतलब 10 किलोमीटर का रेडियस मुझे अलॉट था. तो मैं सुबह जाता था यूनिवर्सिटी, मैं रात को 11 बजे से शुरू हुआ था. मैं शर्माता था बहुत. आई वॉज वेरी शाय. कोई मुझे देख लेगा, कोई कंप्लेन, हालांकि कुछ भी नहीं था. तो रात को मैं 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, जब तक डे लाइट नहीं होती थी, मैं रात को कैटलॉग. तो मेरा एक मैं बैग ले गया था अपने साथ, उसमें पहले कैरी किया, वो फट गया. फिर वहाँ से मैंने एक ट्रॉली स्टील की शॉपिंग कार्ट, एंड देयर वाज अ ह्यूज फाइन ऑन दैट इफ़ यू गेट गॉट. सारी रात वो शोर करती थी, एंड आई वुड ड्राइव के जल्दी से काम ख़त्म हो जाए. एंड आई गेट $50 a week for that, which was nothing. बट आई वॉज हैप्पी कि चलें कुछ तो एटलीस्ट मेरा एक्सपेंस कवर हो जाएगा कुछ. तो दैट आई गॉट सेकेंड डे. ठीक है, आई गॉट दैट ऑन द सेकेंड डे. राइट. उसके बाद ये हुआ कि एक जॉब थी, मैं वहाँ पे, एक गमट्री है वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे डेली जो है वो सर्च करता था जॉब्स, वेटर की, फ्यूल स्टेशन की, इसकी. तो एक जॉब मेरे सामने ना बार बार आ रही है कि वेटर वांटेड, और बहुत दूर है. मैं देखता था, मैं इग्नोर करता था, मैप पे बहुत दूर है, कौन जाएगा, गाड़ी है नहीं, कन्वेंस के पैसे लगते हैं. 1 week दिस हैपन, मुझे जॉब नहीं मिली. वो जॉब चल रही थी, वो जो कैटलॉग थी, गुजारा नहीं हो रहा. दूसरे वीक, तीसरे वीक, थर्ड वीक हो गया, और अब यही जॉब बार बार आ रही थी. मैंने कहा इनको कोई बंदा नहीं मिला. मैंने कैजुअली कॉल किया उनको, तो मैंने कहा आपको वेटर की ज़रूरत है. कहते हैं येस. तो मैंने कहा कि अच्छा मैं अप्लाई करना चाहता हूँ. कहते हैं आप कल आ जाएँ. तो मैं वहाँ से ट्रेन लेके गया. इट वॉज अ 1 hour ट्रेन फ्रॉम वेयर आई वॉज. अच्छा. पूरा 1 hour, डिफरेंट सिटी था, लाइक फ्रॉम ब्रिस्बेन टू इप्सविच. राइट. तो आप वहाँ, मैं वहाँ पहुँचा तो 4 o'clock थे. 5 o'clock वो रेस्टोरेंट ओपन होता था. अब मैं बाहर वेट, सुबह या शाम को? शाम को. राइट. वॉज 5 to 9. Right. थाई रेस्टोरेंट. तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो अंदर ना कोई क्लीनिंग कर रहा है ना, थोड़ा कोई क्लीनर है, वो ओनर था वहाँ का, ओनर एंड शेफ बोथ,
husband wife used to own the restaurant. तो मुझे उसने अंदर बोला आ जाओ तुम नबील हो, मैं कहा यस. कहता बिल, that I got my name बिल. तो बिठाया मुझे, कहता है अच्छा इंटरव्यू लिया ना, काम वाम करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ. काम किया है पहले? यस किया है. कुछ भी नहीं किया था. तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी और ये 3-4 वीक्स में बाहर ग्रॉसरी लेने जाना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, हो गया था. क्योंकि एक तो ये भी है ना, वहाँ पे लोग आपको जज भी तो नहीं करते ना. पाकिस्तान में आप बोल ही नहीं पाते बिकॉज आपने थोड़ा सा अप एंड डाउन किया तो लोग ऐसे हंसते हैं, खुद की तबाह कौन होगी लेकिन आप पे हंसेंगे. वहाँ आप टूटी फूटी बोलें, वहाँ पर आप टूटी फूटी बोलें, वो आपको इंकरेज करते हैं. तीसरे चौथे दिन आप सेट होना शुरू हो जाते हो. आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. आप जैसे भी बोलें यू गेट द कॉन्फिडेंस. कोई हंसने वाला नहीं है. तो मेरी इंग्लिश की वजह से उसको पता नहीं चला कि मैं यहाँ बॉर्न नहीं हुआ. अच्छा. वरना जॉब नहीं मिलती. उसने उसमें लिखा हुआ था कि परमानेंट रेजिडेंस और नेशनल्स अप्लाई. उसने कहा आपको मैं $12 दूंगा कैश इन हैंड घंटे का. $12 होगा खाना हमारी तरफ से, और आप ऐसे करेंगे, मैं अपनी पार्टनर से बात करूँगा. आई थॉट बिजनेस पार्टनर. वहाँ पे पार्टनर वाइफ को बोलते हैं या गर्लफ्रेंड को बोलते हैं. तो वो हस्बैंड वाइफ रन कर रहे थे और एक वेटर का ऑलरेडी था और 4th मैं था. नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल कि यू गॉट द जॉब. तो वो ये हुआ कि मुझे 3-4 शिफ्ट्स मिल गई. पहले स्टार्टिंग में 2 शिफ्ट्स, देन दे लाइक माई वर्क. मुझे उन्होंने पीछे किचन हैंड, डिश वॉशिंग और सब्जियां कटिंग के लिए रखा हुआ था. सही है. लेकिन जब इंग्लिश तो देखी और साथ आई वॉज वेरी जॉली विद अदर पीपल. कस्टमर सर्विस अच्छी आती थी. तो 1-2 दफ़ा उन्होंने ट्राई किया मुझे फ्रंट डेस्क पे. तो उसके बाद फ्रंट डेस्क मुझे दे दिया. सही है. कहा वो दूसरे बेचारे को पीछे कर दिया. उसने कहा आप सब्जियां कट करो, इसको आगे. तो अब आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द गेस्ट एंड एवरीथिंग. एंड हाउ मच वाज दिस पेइंग यू पर मंथ? This weekly over there, I think it was $250 a week. So roughly covering your cost of living. $300 I got that. ठीक है. अभी आपकी फीस रहती है. Right. ठीक है. That's next 10 grand per semester. Per 6 months. At that time, now it's even more. Right. अभी मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो let's park that thought. अभी ये जॉब करो. अल्लाह ने रास्ता इस तरह से बनाया है कि मैं उन्हीं पठानों के साथ घूमता रहता था. मेरे पास एक बैग था, मेरा फेवरेट बैग. उसमें मेरी CVs हमेशा रेज्यूमे मैंने प्रिंट आउट 50-100 प्रिंट आउट करके रखी, जिसको देना बस बांटता फिरता था. तो मैं उनके साथ एक दिन गैस फिल करने फ्यूल स्टेशन पे गया था. तो बैठे हुए हम गपशप लगा रहे हैं गाड़ी में. तो मुझे ब्रदर ज़मीर गुल नाम है उसका, गॉड ब्लेस हिम, कहते हैं कि अंदर जाके ना CV दे कर आओ. मैंने कहा ज़मीर भाई वी आर थके हुए रात के 9 बजे. कहते आओ मैं तुम्हारे साथ जाएगा. तो गुलाबी उर्दू थी तो साथ मुझे लेके गए. वहाँ पे बहुत ही एक लंबा गोरा खड़ा हुआ रात के 9-9:30 बजे में. कहता है कि डू यू हैव जॉब, मेरी तरफ से बात कर रहा है. कहता है ये अपनी CV आप यहाँ पे फिल आउट कर दें और भेज दें, हम आगे दे देंगे. मैंने पूरा एक फॉर्म फिल किया, CV अटैच किया, उसने स्टेपल करके पीछे रख दिया. अब मुझे कुछ पता नहीं. 1 महीने बाद जुम्मे का दिन है, मैं शावर ले रहा हूँ, जुम्मे की नमाज़ की तैयारी हो रही है और मिड शावर जो है कॉल आई. तो कहती है मैं मर्सिडीज़ बात कर रही हूँ. मैं कहा ओके. कहती तुमने जॉब अप्लाई की थी फ्यूल स्टेशन पे? तो आई सेड यस, मैंने अप्लाई की थी जॉब. कहती अभी भी फारिग हो, मतलब जॉब चाहिए? मैं कहा यस. कहती कब आ सकते हो? तो मैंने कहा कि मैं अभी आ सकता हूँ. कहती अच्छा इस तरह करो कि 2 बजे के बाद आ जाओ. तो गॉड गेव मी टाइम टू डू द नमाज़ पढ़ी और इतना एक्साइटेड था कि एनर्ली से जहाँ जाना था वहाँ की बस मिलती थी 2:30 पे. तो मैं पैदल चल पड़ा 4 किलोमीटर्स. गर्मियों का मौसम और मैं पैदल पहुँच गया उसके पास. हम इतना स्लिम सा लड़का और बिल्कुल भूखा होता नहीं है वैसे. उसके बाद बैठा, मैंने उसकी अपनी पूरी स्टोरी बता दी. मेरी ये फ़ीस आने वाली है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं $50 दे रहा हूँ. तो वहाँ पे ना उस ऑफिस में फ्यूल स्टेशन था, शी ओन्ड 15 फ्यूल स्टेशंस. अच्छा. 15 मोबाइल. शी वॉज अ वेरी रिच लेडी. पीछे हेड ऑफिस बनाया हुआ था फ्यूल स्टेशन के पीछे, वर्कशॉप एंड ऑफिस. कहती नहीं अच्छा जहाँ मैं तुम्हें शिफ्ट देने वाली हूँ फ्यूल स्टेशन पे 3 दिन की शिफ्ट है. एंड डोंट वरी आई वुड नॉट रिप यू ऑफ, मैं तुम्हें $22 दूंगी. इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी, $22 पर आवर. और 3 शिफ्टें दूंगी आपको, 8 आवर्स आपकी जो है अ डे शिफ्ट होगी. प्रॉब्लम ये है कि आपको गाड़ी की ज़रूरत है कि वहाँ पे रात को बस नहीं होती. तो मैं नेक्स्ट दिन जो है वो वहाँ पहुँच गया, मैंने रिपोर्ट कर दी. तो शुरू तो मैं बस लेके गया, सुबह का टाइम था, बस लेके पहुँचा. तो वो बंदा जो था वो थोड़ा रेसिस्ट था, ग्रैम. उसने देखा चूचा सा लड़का है, उसको मैं बुली करूँगा. उसने मैं थोड़ा दिन बुली किया, लेकिन मैं बड़ा तरीके से रहा उसके प्यार से. मैं सर बोलता, सर कहाँ उनको आदत थी सर बोलने की. तो 1-2 वीक गुजरे और वो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंडली एंड मेलो हो गया. मैंने कहा ये लड़का शरीफ है तो इसको तंग नहीं करना. उसने दूसरों को तंग करना शुरू कर दिया कि नहीं नबील आएगा तो इस पर इतना बर्डन नहीं डालना, सब काम इसके लिए रेडी होना चाहिए. तो मैं आता तो फ्रिज फेल हो गए हैं, मॉप लगाना है, बस कुछ खास नहीं करना. अब प्रॉब्लम ये था कि रात को
مجھے لاک اپ کرنا تھا 10 o'clock. لاک کر کے سبب تھی, اندھیرا ہو جاتا تھا, اور لاسٹ بس, اب میں وہاں سے اتنا دور تھا, اس سائڈ سے 16 kilometers دور تھا, تو رات کو 9:45 پہ لاسٹ بس میرے سامنے سے گزر رہی ہے اور میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور میں رات کو لاک اپ کر کے پیدل جاتا تھا 4.5 kilometers دور ٹرین اسٹیشن پہ, اندھیرے میں رات کو, بالکل وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر سمجھیں آپ. اور اگر وہ لاسٹ ٹرین مس ہو جاتی تھی تو مجھے اپنی سیلری کا 80% ٹیکسی کو دینا پڑتا تھا گھر پہنچنے کے لیے صرف, جو کہ بہت دفعہ ہوا. لیکن میں وہ رات کو, آپ سوچیں کہ سارا دن آپ 8 گھنٹے کی شفٹ کی, آپ تھکے ہوئے ٹرین میں, پھر آپ 4.5 kilometer تیز جا رہے ہیں کہ آپ کی ٹرین نہ مس ہو جائے, اور وہ بھی مس ہو گئی تو 80% آپ نے وہاں پہ پے کر دیا. تو 1-2 مہینے اس طرح سے گزرے. پھر وہاں پہ روم مل گیا قریبی, تو وہاں پہ شفٹ ہو گیا. اس بندی نے, مطلب اللہ فرشتے بھیجتا ہے نا آپ کے لیے دنیا میں, کہ اس بندی نے مجھے قرضہ دیا میری فرسٹ سیمسٹر کی فیس پے کرنے کے لیے. اچھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا مرسیڈیز میرے پاس 5-6,000 جمع ہو گئے ہیں, جو $4,000 کم پڑ رہے ہیں, اور مجھے ڈپورٹ کر دیں گے, فیس نہیں پے کروں گا. کہتی سویٹی ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آپ مجھ سے قرضہ لے لو, میں آپ کی سیلری سے نا ہر ہفتے 250 کاٹ لوں گی. پہلے سے سارا پلان ریڈی, کیوں باقی سب کی بھی ہیلپ کرتی تھی. تو اس کے پیسے دینے سے میری وہ سیمسٹر کا سرکل شروع ہو گیا. میں نے پے کرنا, یہاں سے کماتا وہاں سے دیتا. اور اللہ نے ایسے فرشتے بھیجے اس یہ روم ملنے سے پہلے بھی, کہ ایک سردار جی جنرلی مطلب ایک دن راک اپ ہوئے فیول ڈلوانے کے لیے, اندر آئے, وہ باجی کیسے ہو, ان کو لگا میں پنجاب سے ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ٹھاک. کہتے ہیں کہاں سے ہیں آپ؟ میں کہا پاکستان پشاور. او اپنے بھائی ہیں آپ, اچھا. کہتے ہیں رات کا ٹائم ہے, گاڑی کدھر آپ کی؟ میں نے کہا نہیں یار میں پیدل جاتا ہوں. کہتے ہیں میں ہوں نا, میں چھوڑ دوں گا. وہ 10 منٹ باہر ویٹ کیا انہوں نے, میں ان کو بہت منع کرتا رہا, انہوں نے مجھے بٹھایا اور ساتھ لے کے جانا شروع ہو گئے. وہ بھی یہاں قریب کہیں ڈومینوز میں پیزا ڈلیوری کرتے تھے, اور گاڑی انہوں نے اپنے کسی دوست کے پاس کھڑی کروائی ہوتی. تو وہ ٹرین اسٹیشن کے پاس دوست رہتا تھا, وہ یہاں آتے تھے, گاڑی کھڑی کر کے ٹرین لے کر, وہی لاسٹ ٹرین لے کر وہ کسی اور سبب جاتے تھے. تو ان کے آنے سے یہ ہو کہ اب وہ ڈیلی آنا شروع ہو گئے. اور میں 1-2 دفعہ کوشش کی ان کو فیول بھروانے کی اور پیسے دی, کمبس کہتے ہیں نہیں میرے بھائی ہیں آپ. تو اللہ نے وہ فرشتہ, مطلب they were just doing for the goodness of their heart. For the goodness of their heart. Right. Or I think they did that for a couple of months. I mean, so you grew up in Peshawar, and in Pakistan back in those days, we were surrounded by the stereotypes of the white man, the stereotypes of non-Muslims, the stereotype of people from other cultures. I mean, this person is from India. If I were to ask you, in hindsight, how did that impact you? I mean, یہاں پہ یہ random لوگ ہیں, گورے ہیں, یہ سردار جی ہیں, یہ فرینچ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں. How incredible is it that you were able to then truly identify کہ humanity is at the core and everything else then just sort of adds to it. کیونکہ وہ چیز پاکستان میں unfortunately ہم دنیا میں ہر کسی کو ریسسٹ کہتے ہیں. More often than not we are one of the most racist قوم in the world. ہمارا تو انٹریکشن نہیں ہوا نا. انٹریکشن ہو تو ہمارے لوگ تو, مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں ایک وہ چائنیز لڑکا تھا, وہ چینی بول اس کو ذلیل کر رہے, کالے کو کالا, ہر قسم کا ہم ریسزم کرتے ہیں. How did that impact you personally? آئی تھنک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وی آر دا موسٹ ریسسٹ نیشن. میں یہاں پہ پٹھان کو پنجابی کو سرائکی بہت ہوتا ہے. وہاں پر میجورٹی جو آپ کے ہوتے ہیں وہ امیگرینٹس ہوتے ہیں, اور پھر اس میں بھی جو آزیز ہیں 80% آر ناٹ ریسسٹ, اور جو 20% ہے اس میں سے بھی 80% آر ناٹ ووکل اباؤٹ اٹ, کیونکہ دے نو کہ رائٹس ہیں. 15 سال میں میرے سے صرف 2 بار ریسزم ہوا ہے, وہ بھی ناٹ بیکاز آف مائی کلر اینڈ مائی کاسٹ, ٹھیک ہے, وہ بیکاز آف پروفیشنلزم ہوا ہے, بیکاز سم ون گاٹ جیلس, یا ان کو لگا کہ میں ان کی جاب لینے والا ہوں, تو دیٹس ہاؤ اٹ گاٹ ہیپنڈ, ناٹ بیکاز آف مائی ریس. جو وہاں پہ مائیگرینٹس ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سردار جی ہیں, یہ فرینچ ڈرائیور ہے, دے ہیو دیئر ڈیلی گرائنڈ. ہر بندہ اپنے گھر کی کمانے کے لیے آپ سروائیو کریں گے, لیکن آپ کو ٹریول کر کے اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے. آپ 1 سال اوورسیز میں گزارتے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ روم شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کون سا بندہ جینیون ہے, کون سا فیک کر رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, کون آپ کو چیٹ کرے گا. اور بہت سے لوگ ڈیسیو ہو چکے ہوتے ہیں, دھوکے کھا کے وہ سمجھتے ہیں. تو بندہ دیکھ کر پہلی میٹنگ میں ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹا بندہ ہے یا سچا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں. اور تھوڑا سا ایمپیتھائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کے اپنے ساتھ جب ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کو دوسروں کی بھی درد کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. بے شک جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. آج بھی
جتنا وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. دا کمیونٹی ان جنرل, دا ہیومن ریس ان جنرل از مور ایمپیتھیٹک overseas than it is with us over here. ہر بندہ آپ کی ہیلپ کرے گا. اور مجھے تو ہر منزل پہ اپنی سفر کے ایسے اچھے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کاٹنے کی بجائے زیادہ ہیلپ ہی کی ہے میری. Interesting. You've spoken extensively about your professional journey, about your survival journey. In the midst of all of this, what was going on at university? I mean, you started an IT program, and it must be quite difficult because جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی conversation میں بھی focus کیا ہے کہ you are just thinking about survival. میرے ڈالرز کیسے پورے ہوں گے, میری ٹیوشن کیسے پوری ہوگی, 8 گھنٹے اگر میں دن میں گیس اسٹیشن میں کام کر رہا ہوں. My understanding is when you started working at the gas station, you stopped working at the restaurant. No, I did 3 jobs. Right, so you were doing 3 jobs. Plus uni. Talk to me about the university experience. Were you able to perform well there? Were you able to, if not in terms of the grades, at least in terms of really understanding کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ IT is not easy in a lot of ways. And a lot of times what people do is کہ وہ جاتے ہیں اور جا کے جب ان کو ڈالر لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار ڈالر تو مل ہی رہا ہے, پاکستان میں تو میں 7,000 روپے کما رہا تھا, یہاں تو بڑا سین ہے. And so university becomes a secondary thing and the survival becomes the primary. What was it like for you? University is very tough in Western countries like Australia, for example. تو میرے ٹائم پہ کیا تھا کہ it was not so much the study. پاکستان کو میں یہاں کریڈٹ دوں گا, یہاں کی جو ایجوکیشن ہے اتنا آپ پہ برڈن ڈالتے ہیں جب آپ اوورسیز جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ان بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس دیٹ آئی واز ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم, جو میں وہاں پہ اسٹڈی کر رہا تھا ان دا فرسٹ ایئر, میں نے FSC میں اسٹڈی کر لیا تھا پاکستان میں. اچھا. اینڈ دیٹ ٹو ان FG ڈگری کالج. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لمس سے یا فاسٹ سے کسی ایسی ٹاپ کالج سے یونیورسٹی سے آپ اسٹڈی کر کے آسٹریلیا جاتے ہیں, آئی کین بیٹ اگر آپ آسٹریلیا میں اگر آپ کو اپنے پیسے کمانے کی فیس کی ایشوز نہ ہو, یو کین ٹاپ دیٹ یونیورسٹی. میرے HDs رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ ڈو وتھ 3 jobs اینڈ آئی ایم ناٹ اے گریٹ academically. تو اس طرح کے چیزیں جو ہے نا وہ آپ پہ برڈنس ہوتے ہیں. تو میرے پہ یہ تھا کہ فیس پے کرنی ہے, اس کی وجہ سے I couldn't top and I couldn't get gold medalist and everything. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ when I was in university first semester میں میرے HDs آ گئے. HDs کیا ہوتا ہے؟ ہائی ڈسٹنکشن above 85%. ٹھیک ہے, all subjects سوائے ایک کے. تو I mean you were basically going to jobs, you were going to university and then whatever time I was not going to university. اچھا, وہاں پہ سیلف لرننگ ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز میں اٹینڈنس نہیں ہے. یو گیٹ اٹس ڈیوائڈیڈ انٹو 2. فار ایگزامپل ایک لیکچرز ہیں, ایک ٹیوٹوریلز ہیں. لیکچرز نو بڈی کیئرز آپ ایگزسٹ کرتے ہو کہ نہیں. There's 200 people in a lecture. لیکچرر کو آپ کو نام بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از اویلیبل آن لائن. اگر ہم لیکچرز لینے جائیں تو ہم کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو میں لیکچرز جو ہیں آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا. I've only been to maybe 3 lectures in 3 years بتا اسٹارٹنگ کے. Interesting. Tutorials is where it counts. Tutorials کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل سکھاتے ہیں, پریکٹیکل لیبس اینڈ دیٹ کاؤنٹس بیکاز اس کے مارکس ہوتے ہیں اور اس کے پہ 10-20% آپ کی ویٹیج بھی ہوتی ہے آگے. تو اس یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک سبجیکٹ میں 20 لیکچرز ہیں تو مے بی 10 یا 5 ٹیوٹوریلز ہوں گے. اس کو میں ضرور اٹینڈ کرتا تھا. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم ملتا ہے. فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس ڈیپ لرننگ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ سبجیکٹ جو ہے صرف منڈے کو 2 بجے ہی ہوگے. نہیں, یو گیٹ منڈے, ٹیوزڈے, فرائیڈے, 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m. So you get to choose and you get to align your own studies. So it's really flexible. And my understanding is that this is a very inherent part of their culture where people are working and people are studying, and so they've built it around where پاکستان میں تو یہ نا, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا IBA نے نوٹیفیکیشن ڈالا ہوا تھا کہ جی بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ فری لانسنگ نہ کریں. مطلب I was just like کہ یار پوری دنیا میں لوگ ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں, ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بچوں کو کیا اتنا بیبی بنایا ہوا ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ بھی نہ کریں. پراپر جاب تو دور کی بات ہے. بٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ اوور دیئر دے آلریڈی ایکسپیکٹ کہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ اور چیزیں کر رہا ہے ان دیئر لائف. از دیٹ کریکٹ؟ ایبسلیوٹلی. آسٹریلیا میں only 5% of the population goes to university and most of them are professionals. So جو بیچلرس ڈگری اسٹڈی کر رہا ہے they already have jobs.
राइट लाइक अ फुल टाइम जॉब्स, तो फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ती है कि आपका जो स्टूडेंट है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जेक्ट्स इनरोल करेगा और फिर आपकी क्लासेस जो है वो अरेंज करेगा. फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं सिर्फ 2 days a week मेरी क्लासेस थी. मैं उसको इतना क्रंच कर दिया था 2 days a week, उसमें से भी मैं एक दिन जाता था. वो भी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स गया, ट्यूटोरियल अटेंड किया, अपनी वो पूरा किया अपना क्राइटेरिया, एंड देन came out and went to jobs again. Right. This was a 3-year program? 3 years, yes. And you taken a laptop with you from here, so you were self-sufficient in that aspect, or no? I didn't have a laptop. So no. You did not need a laptop over there. Any interaction? How did you? I mean, you downloaded the lectures and all of that. I bought a laptop there when I earned enough money. Yes. I see. I only took a small mobile phone with me. You normally have these labs 24 hours in university जहाँ पे आपका uni card है, it's free of cost. Right. आप वहाँ पर जाके study कर सकते हैं. And if you want, you can borrow a laptop from a library as well. I see. For 2 days, 1 week आप loan पे ले सकते हैं free of cost. Right. तो स्टार्टिंग डेज तो वो लोन पे ले लिया लैपटॉप, जॉब्स पे जब जाता था. उसके बाद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद लिया अपने लिए. I see. 3 years में when you graduated, were you confident in and you were doing computer science or business IT? Business analysis. Business, Yes. right? Yes. Were you confident in what you'd done? Like, was the degree a core part of your life? कि अच्छा जी मैंने अब ये डिग्री कर ली और ये मेरा प्रोफेशन है, या बहुत कुछ और हो रहा है और ये भी हो गया है किसी तरीके से, अब देखते हैं क्या करना है? नहीं, आई वॉज़न्ट कॉन्फिडेंट. मेरा जो गोल था स्टडी करना तो था नहीं. ऑब्वियसली टू सेटल डाउन. फैमिली ने बेट किया था मुझ पर एक बहुत बड़ा, तो वहाँ पे सक्सेसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी था, पासपोर्ट लेना, PR लेना ज़्यादा ज़रूरी. तो मैंने कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं स्टडी के ऊपर. जो HDs ली वो इसलिए ली कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे अरबिक कंट्रीज से, गल्फ से, दुबई, सऊदी. तो पहले तो वो बात नहीं करते थे मुझसे बिकॉज मेरे क्लोथ्स और बहुत ही एवरेज सा लड़का है. जब उन्होंने सुना कि HDs लिए हैं इसने, तो फिर ब्रदर नबील याद आ गया उन्हें. तो पढ़ाई में तो दे ज़ीरो, और उनको उस टाइम पे $4,000 मिलते थे पर मंथ इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने पढ़ना है, ये सिर्फ खर्चे के पैसे. तो उन्होंने मेरी सर्विसेज हायर की कि आप हमें असाइनमेंट में हेल्प देंगे. तो बेसिकली उनकी असाइनमेंट्स हेल्प करते करते मैं अपनी असाइनमेंट मास्टर कर लेता था. तो आई हैड लाइक बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई हैड 7-8 स्टूडेंट्स. They were my customers. Right. So you were earning from there as well. Big time. Like one assignment, the help was like $500. Last I graduated, I charged $2,000 as assignment. Bachelor's मैं खुद स्टडी कर रहा था और मैंने MBA की असाइनमेंट बनाई थी. अच्छा. You got 60% लेकिन पास कर लिया था. So interesting. So you graduated in my understanding is 2010. I graduated in 2013. 2013. It took me a year more क्योंकि मैं अपनी फ़ीस सारी नहीं पे कर सकता था. तो मैंने ये एक जुगाड़ लगाया था कि एक सब्जेक्ट ड्रॉप आउट कर देता था मैं. So you need to take 4 subjects, पर मैंने एक सब्जेक्ट ड्रॉप आउट कर दिया. तो बिकॉज ऑफ दैट एक सब्जेक्ट की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती थी. तो दैट एक्सटेंडेड माई डिग्री टू another 6 months plus. I see. And throughout this time you were working with Mercedes and her business and her gas stations? Yes. Throughout. Interesting. तब ग्रेजुएशन करने से पहले मुझे जॉब मिल गई थी IT में. सही है. And that also was a fluke. Fluke ऐसे था कि obviously I was a temporary resident. पहले मुझे ये बताइए, towards the end of your by the time you were graduating, how much were you earning on average across all whatever you were doing? Around 100 grand. 100K a year. अच्छा, मतलब through all these different jobs, one way or the other. Multiple jobs. Okay. Yes. So that means roughly around 6,000 to 8,000 a month you were doing now. Easy. Right. At that time, yes. Interesting. Yes. And that's comfortable, obviously. That's more than comfortable. Yes. You'd move to your own sort of housing. Not at that time. Not at that time. Now I was still very stingy, money saving, and I've been sending money to my parents since 2009. लोन कितना अरसे में वो हुआ? जो लोन लिया था ना 40 लाख रुपीस का, वो तो ऑन इंटरेस्ट था ना. जैसे मैं वहाँ पहुँचा पैसे निकाल लिए, ठीक है, पैसे वापस कर दिए. उस पर इंटरेस्ट था आई थिंक 2.5 लाख रुपीस वो इंटरेस्ट. अच्छा, लोन जो था वो आपने सिर्फ बैंक में शो मनी था वो, तो वो शो मनी आपने सारा वापस कर दिया और आपने सिर्फ इंटरेस्ट का पे करना था. That's it. 2.5 लाख रुपया. That's it. I see. 2.5 लाख रुपये वो, और 4.5 एंड वो जो फीस में पे किया फर्स्ट सेमेस्टर की, राइट, वो लोन था. एंड आई थिंक 1.5 लाख रुपीस टिकटों का और टिकट्स का. तो टोटल 7 लाख रुपीस था. आई पेड दैट ऑफ विद इन 7 months. इंटरेस्टिंग. पहले मतलब मैंने अपनी फीस भी पे की, राइट, साथ ही ये 7 months के अंदर आई थिंक 7 months to a year अपनी मदर को 7 लाख रुपीस भिजवा दिए. And you never had to ask a single time from them ever again? Not a penny. Interesting. Ever. And I've been sending
at least 1 lakh rupees since 2009. तब से मैं regularly parents को support कर रहा हूँ. Interesting. So you graduated and you get a job which is a fluke. Tell me about that. Before the graduation, I think it was my last year. ठीक है, year 2 मैंने clear कर लिया और मैं अभी fuel station पे भी job कर रहा हूँ. कैटलॉग मैंने छोड़ दिया इसलिए कि $50 तक बहुत कम था मेरे लिए. अब मैं वेटर की जॉब भी छोड़ दिया. अब मैं फुल ऑन काम कर रहा हूँ फ्यूल स्टेशन पे. आई गॉट एनफ कॉन्फिडेंस. उसको पता है डिफरेंट साइट पे मुझे भिजवा रही है और डबल शिफ्ट्स करवा रही है. जॉब क्या कर रहे हैं, मतलब वो वर्क क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है अब एट दिस पॉइंट इन टाइम? आप जो है फ्यूल स्टेशन पे काउंटर पे होते हैं. बेसिकली पीपल कम एंड फिल अप पेट्रोल. आप पैसे कलेक्ट करते हैं. आपने फ्रिजेस फिल करने हैं, आपने मॉप करना है, आपने so sort of like a facility manager and or cashier, not a manager. Okay. There's only one person in a fuel station at a time. Okay. आप full manage कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. I'd get double shift from them. तो I was earning enough money. तो मेरी जो फील्ड थी वो एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन थी वो कैशियर की थी. वहाँ पे एक ही बंदा काम करता है एट अ टाइम. आपने फुल फ्यूल स्टेशन मैनेज करा. तो मुझे डबल शिफ्ट लगते 16-17 आवर्स की शिफ्ट. गुड मनी. उसको पता था ये मल्टीपल घर भी संभाल रहा है पाकिस्तान में. यहाँ पे भी जॉब करके पैसे पे कर रहा है. And you were good at your job. You were solid, honest. बेसिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. Right. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं किसी का करता. बाकी काम में तो एवरेज था, लेकिन ये किसी से लड़ाई नहीं करनी. कस्टमर्स यूज्ड टू नो मी बाय माय नेम. आते ही नबील नहीं आया तो नबील कहाँ है आज, नबील जाओ. तो शी लाइक दैट कस्टमर. शी ऑलवेज सेड के बाकी कुछ होना हो गंदा हो साफ हो मैं कर लूँगी, बाकी कर लेंगे, कस्टमर नहीं जाना चाहिए. तो आई रिमेंबर दैट मैं कस्टमर सर्विस वाज 100%. तो शी लाइक्ड मी फॉर दैट एज वेल. प्लस शी यूज्ड टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल. जिसका बच्चा है हेल्प करेंगे इसकी. सेकेंड ईयर मेरा फिनिश हुआ यूनिवर्सिटी से. मैं अपनी यूनिवर्सिटी एक ट्यूटोरियल में बैठा हूँ अभी. मैं अटेंड कर रहा हूँ. आई एम नॉट पेइंग अटेंशन एज ऑलवेज. तो आई ओपन दिस वेबसाइट कॉल्ड seek.com.au. मेरी CV तो हर वक्त रेडी होती थी हर चीज़. उसमें बहुत तरह के ना अजीब गरीब मैंने डाले होते थे एक्सपीरियंसेस जो मैंने कभी किया भी नहीं है. मैं अप्लाई करता रहता जॉब्स हर तरह की. तो इस तरह मैंने एक हेल्प डेस्क की, IT हेल्प डेस्क की जॉब अप्लाई की. अब मुझे नहीं पता. आई थिंक मे बी एक कपल ऑफ डेज़ लेटर मैं जिम में हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और कभी कभी इत्तेफाकन जिम जाने का मौका मिलता था. तो मुझे कॉल आई कि मैं जूली बात कर रही हूँ और आपने ये जॉब अप्लाई किया. मुझे नहीं पता मैंने कौन सी थाउजेंड में से कौन सी जॉब अप्लाई किया है. मैंने कहा यस मैंने अप्लाई किया है. आप ऐसे करें मुझसे मीट करें. कहाँ मिलना है जी? कॉफ़ी क्लब में मिलेंगे, ये करीबी. तो वेंट टू मीट हर. उसको भी पता नहीं चला कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ. बिकॉज बाय दैट टाइम बिकॉज आई वॉज अ कैशियर. मेरी आदत ये थी, यू वॉक इन एज एन अंग्रेज. आप वॉक करें, आप कहें गुड आई माइट, आप वापस टर्न करें कि मैं वो रिपीट कर रहा हूँ. आई यूज टू रिपीट द होल थिंग. मैं उस तरह मैंने एक्सेंट सीख लिया उनका. तो आई स्पोक टू दैट लेडी एंड आई स्पोक इन वेरी ऑजी एक्सेंट. तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं रिक्रूटर हूँ, आपकी मैं मीटिंग करवाती हूँ. गवर्नमेंट जॉब थी, काउंसिल में जॉब थी. मैं आपकी मीटिंग करवाती हूँ वहाँ के प्रोग्राम मैनेजर से. आप मिले उनसे, मुझे आप अच्छे लगे, आपको मैं एज ए कैंडिडेट रेफ़र करूँगी. मैं बहुत ही ईजी. मैंने कहा मुझे कहाँ जॉब मिलनी है, मैं स्टूडेंट हूँ. IT की जॉब मुझे दे रही है ये. मैंने कहाँ मिलने, कॉल नहीं आएगी. 1-2 दिन के बाद, बहुत जल्दी प्रोसेस होना, 2 दिन के बाद कॉल आएगी जी आपकी एक बंदा है पीटर लिजेंस्की, आपकी उससे फ्राइडे को मीटिंग है, आप पहुँच जाए. मैंने सूट बूट पहना, मैं कहा चलना लेट्स गो फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस. जॉब ये मुझे नहीं देने वाले, कभी जॉब की भी नहीं थी IT में. तो वहाँ पहुँचा तो पीटर लिजेंस्की इज़ द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ दिस काउंसिल. गवर्नमेंट इदारा है, लोकल गवर्नमेंट है. साथ ही एक और बंदा बैठा हुआ था. तो वो लेवल 2 हेल्प डेस्क ऑफिसर था. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए, बड़े जनरल क्वेश्चन किया ना. आई आंसर्ड देम करेक्टली. तो मुझे फेस पे कहता है कि लुक नबील, इट्स ईदर यू और दिस अदर गाय दैट्स वेटिंग आउटसाइड. तुम 2 में से एक हो. अगर तुम्हें आज 2-3 बजे तक फ़ोन नहीं आता तो रिमेंबर यू आर रिजेक्टेड. मैंने जुम्मे का दिन था, मैं अपने दोस्त के पास गोल्ड कोस्ट डिफरेंट सिटी में ड्राइव करके चला गया, नमाज़ पढ़ी, आके अब खाने के लिए बैठे ही थे. कॉल आ गई जूली की, नबील डू यू वांट टू हियर द गुड न्यूज़ और द गुड न्यूज़. कहती यू हायर्ड. मैंने कहा जूली एक बात ऐसी कि बात तो ठीक है, फुल टाइम जॉब है, मैं तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ. कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. अब उसको अभी भी नहीं पता कि मैं स्टूडेंट हूँ. ठीक है, उसको लगा नॉर्मली ऑजी स्टूडेंट है, जॉब जाता है. कहती है अच्छा तुम्हारी यूनिवर्सिटी किस किस दिन है. मैंने कहा ट्यूसडे एंड थर्सडे. कब जाते हो. मैंने कहा ट्यूसडे सुबह जाता हूँ और थर्सडे शाम दोपहर को जाता हूँ. कहती गिव मी अ मिनट आई विल कॉल यू बैक. आधे घंटे बाद कॉल की. कहती है पीटर हैज़ एग्रीड ट्यूसडे को 1 बजे शुरू करना और थर्सडे को 12 बजे चले जाना. मैंने कहा अच्छा क्या, हाउ मच आर यू पेइंग. $30 एन आवर.
अब पेमेंट का मुझे इशू नहीं, मैंने कहा मुझे जॉब मिल रही है which will help me in my permanent residency in future. फाइनली हाँ, तो वो हेल्प करेगी, प्लस सीवी के ऊपर अब लेजिटिमेट प्रॉपर चीज़ आना शुरू हो गया जो बिल्ड करेगी, राइट? तो जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की, आई न्यू नथिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. और जॉब कितने की थी? 6 weeks की. अच्छा, आई स्पेंड कॉन्ट्रैक्चुअल थी? कॉन्ट्रैक्चुअल. आई स्पेंड a year and a half there. अच्छा, because they like my work. और किस्मत बदलती. And at this point in time you left the gas station? No, I was still doing it. Okay. I was still doing it. उसका भी मैं ये करता था कि मैं सुबह 8 o'clock यहाँ ये जॉब स्टार्ट करके 5 o'clock तक ये करता था. घर जाके 6 से 8 बजे तक सोना, 9 बजे तक सोना, और रात को 11 बजे वो शिफ्ट शुरू होती. नाइट शिफ्ट मैंने कर ली थी. From night 11 till 6 I was at the gas station. I'll come home and I'll dress up और सीधा ऑफिस. और सोना कब होता था? 1 बजे जो ब्रेक मिलती थी ना ऑफिस से, तो गाड़ी मेरे पास, मैंने कोई होंडा सिविक खरीदी थी 96 मॉडल. मैं उस 1 घंटा गाड़ी स्टार्ट करके एसी लगा के, गर्मी होती थी और मैं सो जाता था. तो we work like robots overseas. We work like, this is my routine for the next 4 years. Wow. और जॉब्स बदलती गई, मैंने वो फ्यूल स्टेशन नहीं छोड़ी. मुझे ज़बरदस्ती निकाला उस बॉस ने. आज भी शी इज़ माई मेंटोर, आज भी मुझे वो सिखाती है, प्रॉपर्टी सब वो बताती है. मुझे ज़बरदस्ती उसने कहा एक दिन, कहते कि कितना पैसा कमाओगे? कहती तुम जाओ तो कोई और स्टूडेंट को मैं रखूँगी ना वीकेंड पे. कहती नबील तुमने घर खरीद लिया है, तुमने सब कुछ यहाँ ले लिया है, यू आर वेल ऑफ. घर खरीद लिया तब भी मेरा बिजनेस था अपना IT में, तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. कहती तुम वहाँ से कमा रहे हो. For you it was more of an emotional thing by that point. For me it was a mentorship. Right. वो मैंने कहा खुदा ना खास्ता कि जॉब से डरता था ना, डर था. मैंने कहा कि जॉब से ले गई, ये तो है एटलीस्ट. मैं इसको लेट गो नहीं. कहती नहीं नबील, द डे यू सफ़र, कोई ज़रूरत हो आपको, यू कम बैक. लेकिन अभी जॉब छोड़ दो प्लीज. So then because of her I left. When was the first time you came back to Pakistan? I came back in 2010. Okay. Yes, 2010. After 2 years, roughly 2 years. मैंने एक दफ़ा विज़िट किया था और बहुत ही ब्रीफ विज़िट था. उसके बाद I came back after 5 years. 2016. Yes. And at that time I decided जब तक मेरी PR नहीं होगी, मैं पक्का नहीं होगा, मैंने नहीं जाना. So 2016 तक हो चुकी हुई थी PR हो चुकी थी मेरी. Right. Yes. Interesting. So 2013 you graduate from your bachelor's. You're meanwhile doing this sort of IT help desk job. What was it like? Was it a maintenance or just standard IT infrastructure management? What was it? 2013 तक मैं as a IT manager बन चुका था. ठीक है. 1.5 साल मैंने ये जॉब की थी. 2010 के एंड में मुझे जॉब मिल गई थी ये वाली. 1.5 साल मैंने ये काम किया. देन आई गॉट अप्रोच्ड बाय अ लॉ फर्म. उनको IT मैनेजर की ज़रूरत थी, वही मैंने अपने आप को ओवरसेल कर दिया था. एंड वंस आई गॉट इनटू इट आई लर्न वेरी क्विकली. तो मैंने उनके साथ एज एन IT मैनेजर जॉब शुरू कर दी थी. तो IT मैनेजर की जॉब शुरू करते करते आई स्टार्टेड गोइंग इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट्स लेता था. 50 lawyers, 100 स्टाफ प्लस. तो बड़ी लॉ फर्म थी एंड लॉयर्स आर वेरी हार्ड पीपल टू वर्क विद. बहुत कुछ सीखा. तो तब तक ये फ्यूल स्टेशन की जॉब, ये साथ मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था IT में, टेक सपोर्ट का. तो वो भी करना शुरू किया. लोगों के घर जाके कंप्यूटर ठीक करना, बेसिकली ये करना था. तो उसमें पैसे ज़्यादा थे, $50 an hour था. But I was enjoying it. Okay, this is my business. Someone is calling me for my experience. और वो भी इस तरह हुआ था कि मेरे पड़ोसी थे. By that time I had rented an apartment for myself. अलग से एक घर 2 bedroom का टाउन हाउस था. वो ले लिया था. मैंने कहा अपना घर है, अब सुकून होगा. I can afford it. तो मेरी आदत है, if I'm worth something, I only afford 1/10 of it. Right. $1,000 की मेरी वर्थ है, मैं 100 से ज़्यादा चीज़ नहीं लेता. मुझे पता है अपने पे इतना बर्ड नहीं डालना. मैंने वो अपार्टमेंट टाउन हाउस लिया. तो उसके साथ एक पड़ोसन थी, शी वाज 70+. तो उसने कहीं से सुन लिया था कि एक नबील कल के लड़का अकेला रहता है यहाँ पे और ये IT स्टडी कर रहा है. हालांकि मैं ग्रेजुएट हो चुका था. तो एक दिन मेरे घर पे आई, मुझे कहती नबील तुम IT स्टडी करते हो? बिल तुम IT में? यस. कहती मेरा प्रिंटर ख़राब है, मेरा कंप्यूटर ख़राब है, आप आके ज़रा देख लो. तो मैं चला गया उसके पास. तो इंग्लिश औरत थी फ्रॉम UK. मेरे लिए कॉफ़ी टी एंड बिस्किट्स लेकर आई ना, बहुत ही क्यूट सी ग्रैंड माँ टाइप की. मैंने कंप्यूटर ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस एंड दैट. आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स फिर से आई मेरे पास. कहती मेरा प्रिंटर ख़राब है, कुछ प्रिंट करना है. मैं फिर चला गया. फिर वो टी एंड चाय और साथ बिस्किट दिए. निकलते हुए मुझे $20 मेरे हाथ में थे. मैंने कहा व्हाट्स दिस फॉर? मार्गरेट नाम है. व्हाट्स दिस फॉर मार्गरेट? कहती है तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मेहनत के, तुम काम क्यों नहीं शुरू करते? हमारी तरह के बहुत से बूढ़े लोग हैं, तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है, वी नीड यू, लेट मी हेल्प यू आउट. तो मुझे कहती व्हाट्स योर नंबर?
अब वो कंप्यूटर पे इमेजिन करें 2013 एक टाइप कर रही है बैठी हुई है कि कीवर्ड, मेरा नंबर बिल द गीक, the word geek, the first time I'm hearing the word geek at that time, Bill the geek, उसने कोई 10 envelope वो प्रिंट आउट किए, मेरे सामने फाड़े, मुझे हाथ से पकड़ा और वहाँ पे यहाँ पे 30-40 हाउसेस थे, हमारे ही अपने लेटर बॉक्स में डाल के आ गए. Day 2 या Day 3 किसी और का कॉल आ गया. Then he asked me कि कितना चार्ज है, मेरे को $20. तो that's how it started. फिर मैंने एडवर्टाइज किया and then rest is history. Interesting. So tell me about the masters and the PhD and you moving from sort of low value computer fix karna to higher value work, and what was that evolution like? While I was working in my field in different companies, तो मैंने ये realize किया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो गोरा कल्चर है, they never stop learning. हर 2 साल के बाद कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि वो डिग्री पे फोकस नहीं करते. मतलब जो मेरे साथ CIOs थे, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, बिग शॉट, ठीक है, वो भी मास्टर्स डिग्री होल्डर नहीं है, वो भी अभी इनरोल कर रहा है, ठीक है, बैचलर्स किया हुआ है बट नो मोर देन दैट. तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि नहीं, आई वांट टू बी एट टॉप ऑफ द गेम. मुझे शुरू से ये पसंद नहीं था कि मैं एज अ देसी, मुझे कोई लो बॉल करे, मुझे कोई कहे कि नहीं तुम नीचे रहोगे, तुम वर्क नहीं. आई वांटेड टू बी द बॉस. मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पेरेंट्स ने सफ़र किया, आई एम नॉट सफरिंग लाइक दैट, मेरे बच्चे नहीं करेंगे. तो मैंने शुरू से अपने आप को अपस्किल शुरू किया. मैंने मास्टर्स स्टडी किया पार्ट टाइम while I was working full time. In what? In MBA. I did MBA. Right. Business administration में मैंने मास्टर्स किया and learning more about people culture, right. Human resource. तो मैंने वो भी पार्ट टाइम किया, and that too through you get support from the government, because by that time I had permanent residency. Or PhD was my hobby, so I did PhD part time as well while I was working in IT. Interesting. And what was that in? That is artificial intelligence, so AI and robotics. Interesting. And what was your sort of research area? Research was the autonomous of robotics in drones, so in more sort of in a military usage. And when did you graduate from your PhD, or sort of finish your PhD? I finished my PhD during COVID. Achha. So I think it was gonna take longer, but during COVID I got laid off. I got made redundant from a company. So that was a perfect time. When COVID hit हुआ था, सिस्टम वहाँ की तो इकोनॉमी डाउन हो गई थी, एंड दिस कंपनी couldn't afford me. तो उन्होंने मुझे upfront बोला, नबील we can't afford you anymore. आप घर बैठें. मेरा बिजनेस था IT में, and that suddenly alhamdulillah boomed. Right. तो I got the opportunity, और मेरा बेटा पैदा हुआ था. So he was 4 months old. मैंने कहा यार perfect time है, अभी PhD भी ख़त्म करो, बच्चों को भी टाइम दो, और relax, don't look for another job. And that's when within 6 to 8 months, I worked on my thesis and completed my PhD. That's in 2021. Interesting. Where did you get married? In 2016. Right. Nikah was in 2016. Rukhsati was 2017. Interesting. And was this was this a love marriage, or did your parents find someone for you? I wish. Definitely arranged marriage थी. Right. और पेरेंट्स की मर्ज़ी से, अम्मी और ख़ासकर मेरी सिस्टर की मर्ज़ी से, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी ब्लेस्ड डिसीजन एज वेल. और वो भी इसी तरह के अपने ही शहर में 10 किलोमीटर दूर. राइट. मुझे ये बताएं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम what sort of work do you do now? So I work in 2 industries at the moment. So my hobby, my passion is artificial intelligence. So I work for the Australian Defence Force in AI and looking after the algorithms. So different तरह के drones, technologies and robots हैं, उस पर मैं काम करता हूँ. So that is 2 days a week. And 3 days a week I worked in information technology IT as a senior project manager. वो भी AS 100 company के related ही मैं काम करता हूँ. उसमें क्या है, as a business analyst आप काम कर रहे हैं, या what's the role? Normally a senior project manager. So I have my own team. The last contract that just finished last month, basically, there was a big hospital getting built somewhere in Townsville. So 3-story multiple complex hospital था. So I had a whole team to myself, 20 plus staff members, business analysts, programmers. उसके तमाम softwares develop करना, internal code करना, फिर external softwares outsource करना. जो मशीन्स हैं मेडिकल की, वो तमाम MRI मशीन्स, यू नेम इट, एवरीथिंग, उसको सोर्स करके उसको फिर ऑल IT से अलाइन करना. आई वाज ओवरसीइंग द होल प्रोजेक्ट. सो वाज a 4 years project. Basically I got into that project at the very end. So I've just delivered that. Zabardast. And you largely do contract work here and there? I only do contract work now. Why? There's good money in contracts for sure. हमारे
देसी भाई जिनको शायद पता नहीं है ओवरसीज़ में, जो कि मैं अक्सर कन्वे करता रहता हूँ ये मैसेज कि जहाँ पे रिस्क है कॉन्ट्रैक्टिंग में वहाँ पे पैसा भी बहुत है. I'll give you an example. एक प्रोजेक्ट मैनेजर, I've got 13 years of experience in my field now, plus actually. एक प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके पास 10 years का एक्सपीरियंस है, अगर वो फुल टाइम जॉब, वही अपनी देसी मेंटालिटी लेके चलता है कि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, फर्स्ट थिंग, देयर इज नो परमानेंट इन ऑस्ट्रेलिया. जब निकालना होगा आपको निकाल देंगे, 2-3 महीने की पे मिल जाएगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. राइट. आपने जब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है तो आपकी सैलरी, आपकी इनकम 4 times हो जाती है, 4 times, समटाइम्स इवन मोर. एक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर फुल टाइम जॉब करता है तो ही गेट्स अराउंड $80,000 $90,000 पर एनम. अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तो यू गेट $320,000. बिग डिफरेंस. But then that's the assumption that you're working, you're on contract throughout the year. Yeah, on average. If I were to ask you today, मतलब एक अंदाज़ा देते हैं, but net across all the different things that you're doing, and I know that you're doing a couple of businesses as well, outsourcing ke. Across all of these different sort of hustles that you have going on, how much would you say you would end up generating in terms of revenue for yourself? Alhamdulillah, I do really well. I mean, if you were in my shoes, if you don't give a number, if you can compare it to कि मैं full time कर रहा होता मैं उसका 4x 5x करता हूँ साल का. If I was doing a full time job, just one job, versus what I'm doing now, at least 11 times more. At least 11 times more. If I just look at the project manager job, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप उसको डिवाइड करते हैं on a daily rate तो you get $250 to $300. ठीक है. अब project managers were $1,200 a day. Right. An average one. ठीक है. Once you get into program level, $2,000 a day. That's how much you can get. Yes, public holiday पे आपको छुट्टी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, लेकिन even if you take all of these things out, you're still at least 6 times better off. और वही बात अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. I just finished a contract last month and I have already got a new contract. ठीक है. So the work is enough to. There's plenty of work for the right person. आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और आपकी एक इमेज मार्केट में अच्छी होनी चाहिए. द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू सेल योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली जब आपकी रेज्यूमे होती है, वी कॉल CV रेज्यूमे ओवर देयर, आप उस पर आपकी फ़ोटो नहीं होती, आपका जो नाम है वो मुस्लिम है, नबील, मोहम्मद, व्हाटएवर, दैट प्लेज अ रोल इन दैट टू. तो आपकी एक तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही शार्प होनी चाहिए, आपकी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, उस पर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए. साथ ही साल आपके जो CV है, जो रेज्यूमे है, वो आप किस तरह आप अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हैं. हर चीज़ नहीं बतानी है आपने. फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे हायरिंग प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं तो आप अपनी टीम में, मुझे पसंद है अपनी टीम खुद चूज़ करना, तो मैं खुद हायर करता हूँ जो रिसोर्स होते हैं. तो उसमें ये होता है कि आपके सामने CV आती हैं, स्पेशली देसीज़ की. उसमें क्या करते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो उन्होंने हेल्प डेस्क का भी लिखा होगा पीछे. I don't care about what you did in 2010 as a help desk officer. That's irrelevant. आप मुझे बताएं इस जॉब के लिए आपने क्या एक्सपीरियंस रखा है. तो keep it to the point, keep it small. मेरे पास टाइम नहीं है. If 400 people apply for the same job, I don't have the time to go through every resume. मैं first page देखूंगा, क्रीम जो उसके टॉप जो उसके पॉइंट्स है वो रीड करूंगा, and that's it. आपकी फ़ोटो नहीं है, then I would go to LinkedIn. And I'll look at your photo, कैसे प्रेजेंट किया आपने अपने आप को, आपके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस कौन से हैं, किस चीज़ को आपने लाइक किया. That's my process, and normally you go through that process with every company. There's a lot of opportunities. आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं. I want to talk about AI. That was your specialization for your education as well, and in terms of the work that you're doing. We're at an interesting time where there's a lot of chatter about AI changing the way that we work and changing the way that our economies function, particularly. Maybe not in the short term, but maybe over a decade or a 2-decade period. In your experience, how would you say AI is going to begin to impact our economies overall, globally, not just, let's say, Australian or Pakistani? AI हमारी फ्रेंड है, उसको हम एज नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए. AI हमारे फ्यूचर में बहुत से काम आसान करने वाली है, लेकिन जहाँ पर हमें इससे हेल्प मिलेगी, हमारी बहुत सी वर्क फोर्स रिडंडेंट होने वाली है, इसलिए कि हम प्लान नहीं कर रहे फ्यूचर के लिए. आई सी द नेक्स्ट 10 years और इवन मोर
That's the era of AI, artificial intelligence. What do you mean by redundant होने वाली, किस तरह की? Give me some context. देखिए हमारे पाकिस्तान में जो वर्क फोर्स है, हम लोग अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें तो हमारे जो मेजॉरिटी जो रेमिटेंसेस आती हैं यहाँ पर, वो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो क्लीनर्स हैं, वो किचन हैंड्स हैं, वेटर्स हैं, शेफ़ हैं, यू नेम देम, ठीक है. तमाम वो काम जो कि मशीन बहुत ही ईज़िली कर सकती है और इनको बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकती है. एग्जांपल देता हूँ, इवन दुबई एयरपोर्ट पे आप देख लें, अभी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पे मैं देख कर आया हूँ कि अभी ऑटोनोमस रोबोट्स काम कर रहे हैं. दे आर क्लीनिंग द इंटायर फ्लोर, ठीक है. फिलहाल उसकी सुपरविजन के लिए एक बंदा उनके पीछे फॉलो अप करता है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दैट्स बिकॉज इट्स ऑन अ ट्रायल बेसिस. विद इन कपल ऑफ मंथ्स वो बंदा भी गायब हो जाएगा, ठीक है. तो आपकी क्लीनिंग तमाम रोबोट्स ने ले ली. अभी ऑटोनोमस कार्स आ रही हैं, आ चुकी हैं, ठीक है. लेकिन अभी जैसे हमारे जो देसी हैं वो जब यहाँ से जाते हैं, इवन जो एजुकेटेड लोग भी हैं ना, वो भी यहाँ से जाके डायरेक्टली ऊबर, टैक्सी, वेटर, इस तरह की जॉब्स में कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो ये तमाम जॉब्स तो आपकी रिप्लेस करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स की इशू नहीं है, क्योंकि आप ना वो बीमार होती है, ख़राब होती है तो ईजिली रिप्लेसेबल है. टेंट्रम्स नहीं है, इनकम पे आपसे लड़ाई झगड़े नहीं होते कि इतना कमाना है, इतना दे दो, ये कर दो. इट्स वेरी ईजी फॉर अ बिजनेस ओनर to get a robot that can do the same job, maybe with more efficiency than a human person. What are some of the most easily replaceable jobs that you can identify potentially? I mean, bottom of the food chain. Some of the jobs that you said are bottom of the food chain jobs. They're the ones जो कि again कोई भी जाता है जाके पहली जॉब, जैसे आपके केस में पहली जॉब आप ये उठाएंगे, you know, low hourly wages. But अगर मैं थोड़ा सा let's say इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ, you know, you got a lot of clerical staff, you got a lot of sort of, let's say, bookkeepers, accountants, I don't know, like ये वाली लेयर है, इसमें या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि यार ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं या वर्टिकल्स हैं या ये जो वर्कर्स हैं, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली डिसरप्ट होंगे? बहुत सी आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ. स्टार्ट करते हैं आईटी से, जो मेरी फील्ड है. अगर आप बात करें प्रोग्रामर्स की, ठीक है, प्रोग्रामर्स की, तो आपके नेक्स्ट 5 years में आपका कोई भी मीडियोकर प्रोग्रामर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जॉब ही नहीं होगी उसके लिए. यू हैव टू बी एट टॉप ऑफ योर गेम, क्योंकि आपके अभी से माइक्रोसॉफ्ट ने पावर ऐप्स रिलीज़ कर दिए हैं. पावर ऐप्स में आपकी तमाम जो आपकी ऐप्स की रिक्वायरमेंट्स है, आप किस तरह की ऐप बिल्ड करते हैं, इवन टू द वेरी बेसिक नीड, कि अगर आप और मेरे जहन में एक आइडिया है, एक थॉट है, अभी क्या प्रोसेस है कि हम एक प्रोग्रामर चाहिए जो कि उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करे, ठीक है. बहुत सी चीज़ें हम नहीं समझते कि पाइथन क्या है, जूमला क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. तो हमें नहीं पता कि कौन सी रिक्वायरमेंट है उस ऐप को iOS पे लॉन्च करने के लिए, कौन सी आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए, कौन सी PC, विंडो या मैक के लिए चाहिए. लेकिन अभी पावर ऐप्स आ गए हैं जिससे कि आप और मैं इन अ सिंपल इंग्लिश एक स्क्रिप्ट टाइप करते हैं कि आई वांट एन ऐप जो कि एक पैसेंजर को इस लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन पे लेके जाए, पर किलोमीटर का इतना चार्ज करे, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, उस पर इतने पैसे अकाउंट में वॉलेट में हो या फिर क्रेडिट कार्ड अटैच हो. तो हर चीज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करें, आप कंपाइल का बटन हिट करें, विद इन मिनट्स आपके सामने एक फुली फंक्शनल ऐप ऑन योर स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. आप उस ऐप को टेस्ट करें, आप देखें कि मेरी रिक्वायरमेंट्स से मैच करता है कि नहीं, जो कि आप पहले नहीं कर सकते. आप प्रोग्रामर के ताबे हैं, उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं. आप उसे डायनासोर का कहते हैं, वो आपको कोई और टर्टल बना के दे देता है, फिर बैक एंड फोर्थ. तो यहाँ पर एक ये हो रहा है कि आपकी जो थॉट है वो प्रोसेस आपके सामने विद इन मिनट्स आ रहा है. सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर आपको कार का कलर पसंद नहीं है, तो आप वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे और AI आपको उसी वक्त सिंपल इंग्लिश में वो लाइन हाईलाइट कर देगा जहाँ आपने चेंज करना है. यू गो एंड मेक दैट चेंज, दोबारा से कंपाइल करें, विद इन अ मिनट यू गॉट योर चेंजेस बैक. यहाँ पर क्या है कि प्रोग्रामर से बात करेंगे, वो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स, फिर चेंजेस करेगा, वो आपको रिलीज़ करके देगा, वो टेस्ट करेंगे कि नहीं ये रिक्वायरमेंट मेरी नहीं, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन. हर चीज़ आपकी ऑटोमेटेड है. तो 5 years के बाद आपके प्रोग्रामर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाले, हर चीज़ मशीन हैंडल करेगी. टॉक अबाउट बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट जो है आपका बिजनेस अलाइन करता है टेक्नोलॉजी के साथ. आपकी हर चीज़ अब नेक्स्ट 5 years में मशीन अभी से कर रही है. चैट GPT क्या है,
ChatGPT इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ AI, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है. जो अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और जो आगे इवॉल्व करने वाली है, ये तमाम जॉब्स रिडंडेंट होने वाली है. अब आप बुक कीपिंग देख लें, ऑस्ट्रेलिया में ई-टैक्स के नाम से एक कंपनी है. पहले क्या थे, अकाउंटेंट्स बैठे होते थे, वो आपकी तमाम जो टैक्स के रिक्वायरमेंट्स, आप जाएंगे वहाँ शॉपिंग सेंटर में उनको देंगे, फिर ये सब चीज़ें होंगी. आप क्या ई-टैक्स एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, यू गो देयर, वही एल्गोरिदम्स हैं, हर चीज़ आप खुद टाइप करें, विद इन मिनट्स आपको टैक्स रिटर्न एस्टिमेट बताता है, भाई ये आपको $2,000 वापस आने वाला है, या आपने इतने पैसे देने हैं, एंड यू लॉज योर टैक्स, गो थ्रू इट. तो दे मेड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स रिडंडेंट. अब या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी ऑन द टॉप ऑफ द गेम जो एग्जिस्ट करेंगे फ्यूचर में, या फिर वो जो तमाम अकाउंटेंट्स हैं, दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वेयर दे नीड टू रीलर्न एंड रीस्किल अगेन. अगर वो अपने लिए जॉब चाहते हैं तो IT प्रोग्रामिंग, बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंटेंट, यू टॉक अबाउट एनी अदर फील्ड्स, मार्केटिंग, योर मार्केटिंग इज गोना बी गॉन. अभी से आपके जो ये आपके SEOs है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एवरी मंथ चेंज होता है. मेरा एक बिजनेस SEO में हैंडल करता है, तो एवरी मंथ हमें अपने एल्गोरिथम्स बदलने पड़ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती हैं. गूगल एडवर्ड्स हैं, किस तरह से काम करता है, अभी से देखेंगे वो आपकी, उसने 90% आपकी जो है मार्केटिंग उठाई हुई है. फ्यूचर में तमाम चीज़ें ऑटोनोमस होगी. कस्टमर जो कि अभी आप पर रिलाई कर रहा है कि आप जाके उसकी कैंपेन बनाएं, उसके कीवर्ड्स मॉनिटर करें. अभी कंपनीज आ गई हैं लाइक क्लिकसीज, ठीक है, वो आपके कस्टमर को ऑप्शन देती हैं कि भाई आपने $100 इन्वेस्ट किया है, 10 क्लिक्स आपके ऐड पर हुए हैं, 9 क्लिक्स तो बॉट ने किए हैं. हाउ आर यू स्टॉपिंग दैट मनी फ्रॉम गेटिंग वेस्टेड? हम आपको सर्विस देते हैं, आप $100 हमें दें, आप $1,000 लगाएंगे, उसमें से आपके अगर 9 क्लिक्स बॉट के हैं तो हम उसमें से 8 बचा लेंगे. तो कस्टमर इज़ वेल इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे पैसे बचाने हैं. तो सूनर और लेटर नबील विल बी इररेलेवेंट अगर मैं अपने आप को अपस्किल नहीं करूँगा और ये नहीं जानूँगा कि मशीन और AI कहाँ पर जा रही है और कहाँ पर मैं फिट होता हूँ. We need that constant reskilling and upskilling ourselves. Do you think there will be enough jobs that will be created as a lot of these redundant, lower value jobs get replaced? My question largely is based on around the idea कि अब जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना रैपिड है कि शायद, और ये ऑटोमेशन कर क्या रही है, ऑटोमेशन एसेंशियली ये कर रही है कि वो कह रही है कि द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन बी नाउ बी अचीव्ड फॉर अ मच लेस कॉस्ट, आइदर अ लेस कॉस्ट और अ फास्टर आउटपुट. तो एक वाइडर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी आता है कि डज ह्यूमैनिटी इवन नीड टू वर्क? इसके ऊपर आई रिमेंबर इलॉन मस्क वंस सेड कि जी maybe in a decade from now most of the developed world will have a universal basic pay and only the ones who want to earn a, like everybody का रोटी कपड़ा मकान sorted होगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी है, अनाज वगैरह सब कुछ उग रहा है, गवर्नमेंट्स जो है उनको बेसिक पे दे रही हैं, और फिर उसमें से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल हु वांट टू लिव बिगर एंड बेटर वो जाएंगे, जाके जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे और वो एक्स्ट्रा कुछ कर रहे होंगे. डू यू थिंक कि वी आर गोइंग टू अ टाइम वेयर ह्यूमैनिटी विल बिगिन टू एक्सेप्ट कि यार ठीक है अब जॉबलेसनेस हो रही है तो हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, या वन वे और द अदर दे विल फाइंड समथिंग एल्स टू डू एज अ लॉट. क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हैं भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ड्राइवर्स, राइट. सो आपके टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स, ये वो सबसे ज़्यादा हेड काउंट तो इन लोगों का है जो कि रिडंडेंट हो रहे हैं. yes. और इनको आप किधर पे प्लग करेंगे अदरवाइज? अगर आप जिस तरह से मैं AI को देख रहा हूँ, अगर आप ख़ुद जॉब नहीं ढूंढेंगे तो जॉब आपके पास चल के नहीं आएगी. फ्यूचर में इतनी ज़्यादा रिडंडेंसीज होने वाली हैं, आपके इतनी ज़्यादा जॉब्स ख़त्म होने वाले हैं, रोबोट टेक ओवर करेगा उस जॉब को, कि जो बंदा अपनी फील्ड चेंज नहीं करेगा वो भूखा मरेगा. अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरह इलॉन मस्क ने कहा ना, ही हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच, ऑब्वियसली दे थिंक इन अ डिफरेंट वे. द वे आई सी इट, अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, एक वेलफेयर स्टेट है, सेंटर लिंक, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर $800 बिलियन का डेट है, $800 बिलियन. सो देयर हैज़ टू बी ए सीलिंग समवेयर. पैसे वो खर्च करते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, बट टू सर्वाइव, इतना नहीं कि आप पैसे कमा के अयाशी करेंगे, बेर मिनिमम आपको मिलेगा. लेकिन कब तक? अभी उनकी पॉपुलेशन है 25 मिलियन, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है. पाकिस्तान इज 25+ करोड़ आई बिलीव.
ان کی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے. اس طرح دنیا میں ہر کنٹری جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے اور جابس آپ کو ختم ہو جائیں گے تو ہم سپورٹ کریں گے, نو دے ول ناٹ. ون ڈے ول کم ویئر دے ول سے کہ بھائی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, آپ کماؤ, آپ جاب چینج کرو, اپنے آپ کو اپ اسکل کرو, ہاں ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. نہیں بٹ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیں ایز اے بزنس when you automate a lot of these things, you basically premium generate ہو رہا ہے. So think of it economic terms میں. Let's assume, اس کو بہت میں simplify کرتا ہوں, let's assume کہ آپ کا ایک پیس آف لینڈ ہے اور اس پیس آف لینڈ میں 4 فارمرز کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی کاسٹ آف آپریشنز یہ ہے کہ وہ 4 فارمرز کو آپ نے پے کرنا ہے. اب اس کو میں سوئچ کرتا ہوں اور میں اس میں کہتا ہوں کہ یار 4 فارمرز کو میں فائر کرتا ہوں اور میں ایک آٹونومس فارمر رکھ لیتا ہوں جو کہ ایک مشین ہے, میرے پورے 10 ایکڑ کے لینڈ میں گھومتی ہے, وہی سیڈ بھی پلانٹ کرتی ہے, وہی جو پروڈیوس ہے اس کو مینیج کر رہی ہے, وہی ایونچولی اس کو کٹ کرے گی اور وہی اس کو پروسیس کر دے گی. لیٹس سی ملٹیپل سیٹ آف مشینز ہیں فار دس, اینڈ بیکاز اٹس ٹیکنالوجی اینڈ اٹ از آپٹیمائزڈ اینڈ دیر از اے لاٹ آف ٹیک ان دیر, تو میری پروڈیوس جو ہے ایک تو وہ جو لیٹ سے پر ایکڑ میں جو بھی نکال رہا تھا وہ ڈبل ہو رہی ہے اور میری کاسٹ جو ہے وہ ہاف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سو فار اے بزنس جو میرا ریونیو ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈبل ہو رہا ہے اور میری کاسٹ ہاف ہو گئی. اب یہاں پر جو ڈفرینس ان گورننس ہے دیٹ ایلن مسک پروپوزز از ناٹ کہ آپ منی پرنٹ کرو اور ڈیٹ لو اور ڈیٹ لے کے آپ لوگوں کو فری منی دو. واٹ ہی پروپوزز از دیٹ ان دیٹ ایکسٹرا پریمیم دیٹ از جنریٹڈ دیر ول بی اے نیو ٹیکس ریجیم وچ ول بیسیکلی سے کہ اچھا جو ہائی پریمیم کمپنیز ہیں ان کو ہم ٹیکس کر کے جو جاب لیس ہیں ان کو ہم بیسک منیمم یونیورسل بیسک انکم دے دیں گے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. اور اس کے بعد پھر ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیپل ہوں گے جن کو جو لیفٹ اوور جابس رہ گئی ہیں تھوڑی سی دنیا میں, they can compete for those jobs if they want to live better, if they want to travel, if they want a bigger house, if they want a this or a that or whatever. But in terms of کیونکہ مارجن کال بچتی ہے نا بزنسز کے اندر جب وہ آٹومیٹ ہو رہے ہیں, لائک لیٹس سے دبئی ٹیکسی ہے, دبئی ٹیکسی کی سب سے بڑی کاسٹ اس وقت یا اوبر کی سب سے بڑی کاسٹ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کا ڈرائیور ہے. بے شک جب وہ آپ ڈرائیور کو ہٹا دیتے ہو اور ریونیو ریمینس دا سیم تو دا پروفٹ پریمیم گوز اسکائی ہائی, and it is that profit premium that needs to be taxed to distribute that amount to humans. اب again it can be argued کہ historically جب ہم نے ایگریکلچر میں میکنائزیشن ہوئی, جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تو in terms of productivity that humanity has achieved over time وہ ایکسپونینشلی گرو کی ہے. But medieval peasants worked less hours than our modern corporate worker. So ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ just because productivity increase doesn't mean کہ humanity اب سیدھی ہو کے بیٹھ گئی کہ یار بس ٹھیک ہے ہم جو ہے نا بس سیب کھاتے ہیں, آلو کھاتے ہیں اور بس سکون سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم پہلے کھا رہے تھے. وہ they keep on getting towards excesses کہ ہمیں فون بھی چاہیے, ہمیں بجلی بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے. So they find one thing or the other to do. But if I were to ask you, in your opinion, do you potentially see a world where humans become okay with the idea that maybe we don't have to work, maybe we don't have to work for money, maybe we have a basic income coming in and maybe we're spending our time as humanity painting and fishing and just living like that? I think, look, business is all about profits. ٹھیک ہے, ethical business, thinking about people, I see that as a myth. ہر کمپنی اپنے پروفٹس کے بارے میں سوچتی ہے, وہ یہ نہیں سوچتی کہ انہوں نے اتنے بندے ریڈنڈنٹ کیے ہیں, نکالے ہیں, تو ان کو کیسے آگے کمپنی میں جاب ملے گی. نہیں, no, they don't think about that, and that's going to happen. Industrialization, capitalism کا زمانہ ہے, and it's going to only grow. مشینس کی یہاں پہ غلطی نہیں ہے, نہ ہی اس بزنس کی غلطی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 20 سال پہلے چلے جائیں, ٹیلی فونس کیسے ہوتے تھے, وہ رنگر والے وہ جو ڈائل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اگر آج بھی ایک بندہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں, رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے کہ میرے فونز نہیں بک رہے, میرے ہینڈ سیٹس نہیں بک رہے, کیونکہ اب موبائل فون آ گیا, ہر چیز اس میں آ گئی ہے, تو کیا آپ اس سے سمپتھائز کر رہے ہیں کہ یار بیچارہ اس کے فون نہیں بک رہے, گھر کیسے چلے گا؟ نہیں, یو آر کنسرنڈ اباؤٹ یور فون. ایپل والے اپنا فون بیچ رہے ہیں, اینڈرائڈ والے اپنے فون بیچ رہے ہیں. کوئی بندہ اس کے گھر جا کے, اس کی شاپ پہ جا کے نہیں کہہ رہے یار تم بیچارے تمہارے فون نہیں بک رہے, نہیں, بیکاز اس نے اپنے آپ کو نہیں چینج کیا.
وہ اب موبائل فونس کیوں نہیں سیل کر رہا, وہ موبائل فونس کیوں نہیں ریپیئر کر رہا, کہ نیڈ آف دا ٹائم از موبائل فونس. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کوئی کمپنی, یہ یاد رکھیے کہ رچ پیپل ڈونٹ پے ٹیکسز. میں اپنی سیلری سے ٹیکس پے کرتا ہوں, میں اپنے بزنس سے 0 ٹیکس پے کرتا ہوں, میری گاڑی ٹیکس پے جا رہی ہے, میرے فلائٹس جو ٹریول کرتے ہیں سب ٹیکس پے. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ناٹ پیئنگ اینی ٹیکس اس کے تھرو, اینڈ اٹس لیگل. گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. جو ویسٹرن کنٹریز میں بھی گورنمنٹ سلیکٹ کی جاتی ہے, وہ تمام آپ کے انڈسٹریلسٹ سلیکٹ کرتے ہیں. دے فنڈ دا کیمپین, ان کے تھرو آتے ہیں پھر وہ تمام جو سسٹم, اینڈ ایوری ون نوز اٹ اوور دیر از ویل. تو کبھی بھی کمپنی نہیں چاہے گی, کمپنی کے CEO مالکان نہیں چاہیں گے کہ وہ زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے. وہ چاہتے ہیں زیادہ ڈالر ہمارے پاکٹ میں آئیں, آپ اور میں اپنا بندوبست خود کریں. تو اٹ از آور اون رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے آپ کو کس فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں, آگے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہم ویل پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. ان کی ذمہ داری نہیں ہے. دا وے آئی ایم سینگ اٹ, لائک آئی سیڈ, بہت سے لوگ بدلنا نہیں چاہتے, اور آخر میں آ کے وہ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بھئی آپ کی رسپانسبلٹی, اور گورنمنٹ نے وہی کرنا جو آج تک کرتے آ رہے ہیں. ہر گورنمنٹ یہاں سے سنا, یہاں سے نکالا, اینڈ ایٹ دی اینڈ آپ یو آر آن یور اون. تو اپنے آپ کو جب تک ہم نہیں چینج کریں گے, نتھنگ ول ہیپن. رائٹ. اگر میں اس میں again Pakistani context, I get it, right? Yes. Let's look at Europe. Europe has an aging population, and ایک میرا thesis for example, اگر simplified without the AI sort of exponential evolution, میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, I'm a big proponent of sending people abroad. I'm a big proponent of جس کو لوگ برین ڈرین کہتے ہیں. میں بالکل بھی اس سے ایگری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یار 25 کروڑ کی آبادی ہے, فارغ بیٹھے ہیں سارے کے سارے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھائیں, جتنوں کو یہاں پہ ایبزارب کر سکتے ہیں کریں, اس میں ایکسیس کیپیسٹی بلڈ کریں اور اس کو باہر بھیجیں. Those people send you money, those people send you, it's not just money, they send you knowledge base کا ایک ٹرانسفر ہوتا ہے, سافٹ پاور کا ٹرانسفر ہوتا ہے, you know, it's good to have those people. اگر میں ویسے ایک انالیسس کروں تو مجھے وداؤٹ AI مجھے نظر آتا ہے کہ یار یورپ میں ایک رائزنگ اپرچونیٹی ہے, جس میں they have an aging population, average population at 49. That means 50% of that population is more than the age of 49, جو کہ اگلے 10 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, اور ان کو بیسیکلی کیئر کی ضرورت ہے. اینڈ پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ سوسائٹی میں نہیں بلڈ ہو رہی بیکاز ورکنگ ایج پاپولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. سو دے ول نیڈ ٹو ایبزارب اے لاٹ آف پیپل فرام ادر کنٹریز جو کہ ایونچولی آئیں گے. Same with Japan, with China. This is a story with a lot of different countries in the world. اس کانٹیکسٹ میں تو ایک پوٹینشلی آپ کو ایک اپ سائڈ نظر آتی ہے پاکستان کے لیے, کہ وہ لوگوں کو اگر ٹرین کر دے تو وہ جرمنی میں, وہ جاپان میں, وہ اوور آل وائڈر یورپ کے اندر وہ پوٹینشلی ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک دوسری طرف مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وے آئی دین, پہلا تو فرسٹ امیڈیٹ مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ جو موسٹ ریڈنڈنٹ, دا پیپل ہو سینڈ یو دا موسٹ اماؤنٹ آف ریمیٹنس ان اکراس دا مڈل ایسٹ, وہ ریڈنڈنٹ ہو کے سارے واپس آئیں گے. ٹیکسی ڈرائیور واپس آئے گا, potentially restaurant workers, you know, a lot of these folks will eventually come back. And this is something that I've checked, کہ Dubai Taxi is already starting their autonomous taxi program, جس میں انہوں نے 6 ٹیکسیاں بلا کے already اس کو لانچ کر دیا, and then they're planning to phase them out over the next 3 to 5 years. Uber globally اس کا پورا vision ہی یہی ہے کہ ہم نے basically the biggest cost factor کو نکالنا ہے, that is the drivers, and so autonomous vehicles is where everybody is trying to go. تو وہاں پر جس ایک میجر ڈالر ڈرائیور جس کے اوپر ہم ہسٹوریکلی ریلائی کرتے آئے ہیں کہ یار ایکسپورٹس ہم نہیں بھی کر پا رہے نا گڈز اور سروسز کی, خیر ہے یار ہمارا بندہ باہر جائے گا پیسے بھیج دے گا, وہ شاید ایک ہٹ لے. اور دوسرا جو مجھے ایک پوٹینشیل نظر آتا ہے, and I want to then move on to robotics as well, is when you Tesla recently announced that they're working on a consumer robot, driven by artificial intelligence. یورپ کی جو پروڈکٹیوٹی پرابلم ہے وہ شاید اتنی زیادہ ڈراسٹک نہ ہو ابھی ہے, کیونکہ یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ دے ہیو این ایجنگ پاپولیشن, دے ڈونٹ ہیو انف پروڈکٹیو ورک فورس, اینڈ دیئر پاپولیشن از انہیرنٹلی اینٹی امیگریشن رائٹ ناؤ. اٹس ایکسٹریملی نیشنلسٹک, اینڈ اٹس کازنگ اے لاٹ آف پرابلمس پوسٹ دا سیرین وار اینڈ دا سیرین ریفیوجی کرائسس. یہاں پر potentially innovation in AI and robotics could potentially fill that gap for the Europeans, where they don't need to outsource and or import human capital from developing countries like Pakistan, India and Bangladesh anymore.
And so that potential opportunity, that upside might just go away. And so in that context, वो एक बात आती है ना, मेरा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इसके ऊपर है कि यार फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, डेवलप्ड कंट्रीज का तो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज, अगर इमिग्रेशन ना हो, उनकी पॉपुलेशन आर ऑन अ डिक्लाइन अक्रॉस, right? Absolutely. And so they may as well just use AI to bridge the productivity gap. And while they do that, opportunities for us become less and less as we develop, right? Because हमारी तो opportunity सारी आ ही रही है कि हमें कितना बाहर से ट्रेड करना है, कितना बाहर से काम करना है, so on and so forth. Yes. उस context में आप पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं in terms of opportunities? आपने कहा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिडंडेंट हो जाएगा जी, पाकिस्तानी है कहते हैं अपस्किल करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, तब भी फ़ायदा नहीं है. Yes. बाहर जाके काम करने की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें भी फ़ायदा नहीं है. तो फिर एग्जैक्टली फिर बंदा क्या करेगा पाकिस्तान में? फिर तो या तो अनलेस हम कुछ इंटरनली ही फिगर आउट करें कि हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन करनी है. अदरवाइज जो मैसेज हैं उनको आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे इन द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे आई सेड के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट है, दे वो भी रिडंडेंट, ठीक है. जहाँ पर ये डाउन साइड है वहाँ पर आप देखें कि साइबर सिक्योरिटी इज़ गोना बी ह्यूज इन द फ्यूचर, ठीक है. जहाँ पर आप AI रोबोट्स की बात करें, इंटरनेट, वर्ल्ड वार वेब 3, क्रिप्टो की बात करें, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको यहाँ इस तरफ जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर में आप इस तरह की कंट्रीज़ में जब जाएँ. अब आप एक चीज़ नोट करें, डे बाय डे US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के डेवलप्ड नेशंस, इनका माइग्रेशन का क्राइटेरिया टफ हो रहा है. और वो इसलिए हो रहा है कि इनको वो लोग चाहिए जो कि आके उनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें ना पॉजिटिव वे, मे बी 5-10 ईयर्स तक करें, लेकिन करें. वो लोग नहीं चाहिए जो कि यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जाएँ लेकिन वहाँ जाके टैक्सी चलाएँ, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, उनको उनकी रिसर्च टीम्स होती हैं ऐसे, तो वो अपनी क्यूज़ ओपन नहीं करते. उनको पता है कि भाई वी नीड 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल दिस ईयर. यहाँ में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए 3000. अब जब हमारे देसी, और ये चीज़ इंडियंस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे ही सिर्फ आपको मिलेगी कि हमारे जो देसी हैं वो यहाँ से PR ग्रांट होके जाते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. वहाँ जाके टेम्परेरी उनको जॉब्स नहीं मिलती. एंड आई गेट दैट, इट्स नॉट ईजी, हर बंदा लकी नहीं होता. आप ऊबर स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसमें, आपने वो क्राइटेरिया फिल नहीं किया. वो जब एट द एंड ऑफ 3 to 5 years वो जब एनालाइज करते हैं कि भाई हमें 10,000 साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए थे, मार्केट में तो 100 है, तो ये बाकी कहाँ गए? और वहाँ पे जो टैक्सी ऊबर ड्राइवर्स जो एजुकेटेड गोरे नहीं हैं, और जी यहाँ पे देसी भी जो एजुकेटेड नहीं है, वो कहते हैं भाई यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा हो गए, हमारी इनकम कम हो गई. तो फिर वो इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. तो अब क्या कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ कि वो अपनी क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कोई एवरेज जो वहाँ पहुँच ही नहीं सके. अब आपको वो बंदा फ्यूचर में चाहिए होगा हु वुड बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम. प्रोजेक्ट मैनेजर है वो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिजनेस एनालिस्ट है विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, अकाउंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, लॉयर है वेरी टॉप पे, डॉक्टर्स हैं, एग्ज़ाम्स और भी टफ हो जाएंगे वहाँ पे, ताकि जब आप आएँ तो ये ऐसा ना हो कि भाई, और या सर ये ऐसा क्राइटेरिया भी होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आपने यहाँ से एक्सपीरियंस दिखाया तो आप पहुँच गए. नहीं, दे विल सून इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस कि भाई आपने जो ACA का एग्ज़ाम है वहाँ का डॉक्टर्स का, यू हैव टू पास इट थ्रू पाकिस्तान. ऑनलाइन करें पर पास करें, देन यू, या फिर कोई टेम्प्रेरी वीज़ा होगा 1 साल का, आप आएँ, यू क्लियर दैट एग्जाम एंड देन यू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी. ऐसे फ्री में प्लेट में जैसे बांट रहे हैं ना सब अभी तक, वैसे नहीं चलेगा. तो यहाँ से जो हमारे लेबर्स हैं ना, ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो शेफ़ हैं, ये जो जनरल हैंड है, लेबर है, इनको अपस्किल करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये लोग पैसा कमा के दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये लोग रेमिटेंसेस भेज रहे हैं. अगर ये लोग ही रिडंडेंट होकर बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट इनको संभाल नहीं सकेगी. अभी से इतनी हमारे ऊपर, यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है. आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं संभाल सकती अपनी उस क्लास को जो कि काम नहीं कर रही है, करना नहीं चाहते. तो हम पाकिस्तान कंट्री जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है बहुत से डिफरेंट एवेन्यूज़ में, वो कैसे हमारी लेबर क्लास को संभालेगी, खासकर जब गल्फ़ कंट्रीज से ये तमाम लोग वापस आ जाएंगे. तो अभी से इंस्टीट्यूट्स खुलनी चाहिए, अभी से ऐसी फील्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करें, रोबोटिक्स पे कंसंट्रेट करें, AI पे कंसंट्रेट करें, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं, अप स्किल करें. सिर्फ पढ़ाने के लिए उनको एजुकेट मत करें, उनको स्किल्स सिखाएं. लाइक आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई एम इन फेवर ऑफ टेक्निकल कॉलेजेस. एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, डू यू नो हाउ मच अ प्लम्बर अर्न्स देयर? एक प्लम्बर $600,000 अ ईयर.
प्लम्बर डॉक्टर्स के मुकाबले में कभी कभी उससे ज़्यादा कमाता है. इलेक्ट्रिशियन कितना कमाता है? $500,000 a year. अगर मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर आ जाए तो मुझे परेशानी हो जाती है. ही चार्जेस $200 $250 एन आवर. एक घंटे का $200 से $250 कमाता है और वो टच करता है सिर्फ चीज़ को. उसके बाद तो अलग से अगर आपके घर का पाइप लीक हो गया तो $15,000 का एक्सपेंस है. प्लम्बर्स विल नॉट बी रिडंडेंट, इलेक्ट्रिशियन विल नॉट बी रिडंडेंट. इस तरह की फील्ड्स पे ये जो आपके कैबीज़ हैं, टैक्सी वाले जो गल्फ़ में आप जाके इनको काम करवाते हैं, इनको ये स्किल्स सिखाएं, इनको मंगाएं. इनको कहेंगे भाई आपने अभी तक 10-20 लाख रुपए पाकिस्तान भिजवा चुके हैं कम से कम. फैमिली को भिजवाया पर वो पैसा तो हुकूमत के पास ही जाता है ना. तो भाई आप पे हम 10,000 रुपये लगा के आपको ये स्किल सिखाएंगे, प्लम्बर बनाएंगे आपको प्रैक्टिकल काम सिखाएंगे, किताबी नहीं, प्रैक्टिकल, ताकि आप फिर से जाओ उस गल्फ कंट्री में और आप प्लम्बर बनो. आप ऑस्ट्रेलिया जाओ. अच्छा, आप बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये चीज़ें नहीं बताते. ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड कोर्सेज पे आपको वहाँ पे PR मिलती है. वो क्या मतलब अभी IT अगर किसी ने स्टडी किया है 3 साल की वो डिग्री करके ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट कोई $60,000-70,000 वो फीस पे करके PR के कोई चांसेस नहीं है. ठीक है. यहीं पर अगर कोई यहाँ से 1 साल का डिप्लोमा करता है इन प्लम्बिंग, प्लम्बर बनता है 1 साल का डिप्लोमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम हियर, फ्रॉम पाकिस्तान. okay. 1 साल का डिप्लोमा करता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो वहाँ पे जाके 2 साल का डिप्लोमा करता है. उसकी फ़ीस कितनी है? $24,000. डिग्री की फ़ीस कितनी है? $75,000. कितना डिफरेंस हो गया? जब वो 2 साल का डिप्लोमा करता है उसको अगले 5 साल का वीज़ा मिलता है वहाँ पे. इन 5 साल में जॉब ढूंढो या बिजनेस करो, दोनों में से कोई मिल जाती है, यू अप्लाई फॉर PR. हाउ ईजी इज़ दैट? हमारे how long does it take for the PR? 7 years roughly. 7 years. लेकिन ये उनकी बात करो जिनके पास सिर्फ FA या FSC की डिग्री होगी. राइट. लेकिन वो प्लम्बर बनेंगे और वो कितना पैसा कमाएंगे? $500,000 a year. बिग अमाउंट ऑफ मनी. तो इस तरफ हमारी लेबर क्लास को लेके जाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. बेचारे ऑब्वियसली इतने एजुकेटेड नहीं होते, इनके पास इतनी सोच नहीं होती कि अपने फ्यूचर का सोचें. सारी ज़िंदगी कमाया, उड़ाया, खाया, जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी की. मिडिल क्लास गरीब लोग हैं. गवर्नमेंट जब इस तरफ फोकस करेगी तो ऑब्वियसली एट द एंड फैमिलीज तो उनकी यहीं पर है ना. पैसा कहाँ से आएगा? आप यूरोप से आएगा, कनाडा से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, US से आएगा, और ज़्यादा आएगा. रेमिटेंस आपकी इंक्रीज. इट्स एन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट on its own people rather than you make them a liability, make them as an investment. Right. What are your thoughts on robots generally? We talk a lot about artificial intelligence and services. Everybody has seen the ChatGPTs and the DALL-Es and the Midjourneys and software products. But like I mentioned earlier, Elon Musk talks about having a consumer robot out there, and most recently we saw the iRobot IT film and then Terminator and all of those. Obviously वो तो खैर Terminator तो बड़ी dark side लेगी थी. But do you envision a world where there's a robot in every home that does some of the more menial tasks and maintenance and cooking and all of those things at an affordable rate? Affordable से मुराद मेरा ये maybe $25,000-$30,000. जिस तरह आपकी गाड़ी होती थी, गाड़ी became an important over the last 100 years, an important buy for every family, right? उस तरह से in the developed world a helping robot might just become a very standard product in every household. Do you think? Definitely. I mean, maybe not so in Pakistan in near future, but definitely in Western countries. आप देखें कि हमारे घर में जो appliances हैं, ये भी मशीन एक तरह के robots हैं. वॉशिंग मशीन है, आपके फ्रिजेस हैं. इसमें जब एडवांस फॉर्म में आप जाएंगे तो रोबोट्स आपके घरों में, हाउस होल्ड में हेल्पिंग हैंड होंगे. बट डू यू थिंक रियलिस्टिकली वी आर एट दैट पॉइंट वेयर वी कैन क्रिएट दैट टेक्नोलॉजी एंड एक्चुअली शिप इट आउट टू होम्स? या अभी भी एक ख्वाब है, साइंस फिक्शन है एसेंशियली? नहीं, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट तो करती है, ठीक है, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. नॉट एवरी हाउस होल्ड कैन अफोर्ड इट. आई मीन इवन अ गुड हाउस होल्ड कैन नॉट अफोर्ड इट. आई मीन एक रोबोट $25,000 का आपको कॉस्ट करता है, समटाइम्स इवन मोर. दैट्स द वैल्यू ऑफ अ कार. और इस वक्त जो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपके डिशेस वॉश कर रहा है, ठीक है, या आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें वो वॉक जो है उससे वो चमचा हिला रहा है. दैट्स व्हाट इट कैन डू एट द मोमेंट, ठीक है. लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह आप देखें गाड़ियाँ सस्ती हो गई, फ्रिज हो गए सस्ते, जो नई चीज़ें आती थी वो सस्ती होना शुरू हो गई, मोबाइल फ़ोन्स आर चीपर.
जैसी जैसी ये चीज़ें कॉमन होती जाएंगी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और रोबोट जो है वो आपको हर वेस्टर्न कंट्री के घर में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, यहाँ पे मज़दूर बहुत सस्ता है, घर पे मज़दूर के लिए नौकर मिलते हैं, वहाँ पे नहीं होता. वी हैव टू डू एवरीथिंग आवरसेल्फ एंड इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम of every Western country. Even in Pakistan, हम देसियों के लिए भी है कि wife, if she's working for example, she has to cook, she has to look after the kids, घर में सफाई करना. अब हमारे घर में जो सफाई है रोबोट है, वो रोबो वैक्यूम, उसको मैंने ऑलरेडी प्री प्रोग्राम किया हुआ है, पूरे घर में वो घूमता है और सफाई करता है. सो वी डोंट नीड टू मॉप, उसमें प्री बिल्ट मॉप है, उसमें सब कुछ है. यू वुड हैव सीन दैट राइट. तो फ्यूचर में मे बी इन 10 years आई थिंक इट बी जनरलाइज्ड कि आपके घर में एक रोबोट होगा जो कि आपके घर की जनरल सफाई, आपके घर की मेंटेनेंस, बल्ब चेंज कर देना, इवन कुकिंग, हर चीज़ तो अब वो है ना, आपके घर में जो है वो बॉयलर्स रखे हुए हैं, आपके घर में जो है वो एयर फ्रायर्स रखे हुए हैं, उसको ऑपरेट करना है. दे वुड बी एबल टू डू दैट एंड दे वुड बी क्वाइट एफिशिएंट एज वेल एंड क्वाइट इकोनॉमिक टू. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स से कंपेयर करें तो डेफिनेटली विल बी अ बेटर चॉइस. राइट. मुझे ये बताएं कि यू वर्कड इन military applications of AI as well. Do you remember, have you seen Black Mirror? I have, yes. Black Mirror had a few episodes here and there about robots and dark side of potentially Terminator सामने, iRobot सामने. Science fiction has been obsessed with the idea of robots essentially bringing about the demise of humanity. Matrix, something similar. Elon Musk has been very vocal on the potential downside of AI, and not just Elon Musk. I remember recently one of the senior researchers at Google, left his job and said कि जी तो बड़ा तबाही मच जाएगी. The US government recently came out with a regulation, most recently कि जी वो AI ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बड़े नुकसान होंगे. There's a lot of chatter now of the downside of the potential harm that AI or unchecked AI research can do. पहले तो मुझे ये बताएं कि in your experience, do you sincerely believe that AI poses a very serious threat to our society, culture and survival? And second, more importantly, do you think as humans we can now control that evolution? So ये question basically दूसरे वाला ये है कि ठीक है, हम उसके अगर हम कहते हैं कि वाकई पोटेंशियल डाउन साइड है, बट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर भी ले या गुड गाइज उसको हाथ बांध के उसके ऊपर काम कर भी लें, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे. एंड सो देयर कैन ऑलवेज बी द बैड एक्टर सिटिंग elsewhere who will do the AI research and AI evolution in the unchecked, unregulated way. And so the outcome of a negative form of AI is something that will inherently be imminent irrespective of how much you'd like to control it. What are your thoughts? I see AI at the moment, you can see AI is controllable, but I also see that as a potential threat. जो मूवीज़ आप देखते हैं ना, अभी यू मे लाफ एट दिस बट दिस इज़ माई ओपिनियन, जो मूवीज़ आप देखते हैं जिसमें तमाम चीज़ें बताते हैं लाइक टर्मिनेटर एंड एवरीथिंग, आई सी देम एज अ मैसेज. If you look at movies 20 years ago and the technology that they show you, some of the technology exists now. और military में एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो military technology होती है, it's always 20 years ahead of time. जो चीज़ जनरल पब्लिक को बताई जाती है वो 20 साल 25 साल पहले एग्जिस्ट करती है, और उसका भी छोटा सा फॉर्म रिलीज़ किया जाता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड एवरीथिंग. एंड व्हाइल आई कांट टॉक अबाउट दैट, आई कैन डेफिनेटली टेल यू के AI के जितने बेनिफिट्स हैं कमर्शियली एंड सिविलियंस के लिए, when you go to the other side and talk about military, robotics and nuclear side as well, autonomous robots, it is quite dangerous as well. And even Elon Musk mentioned that a couple of times as well, and I agree with him on that. I believe there may come a time where robots may control us and you may not control the robots, क्योंकि उनकी एक अपनी self thinking होगी, self learning, not so much thinking, self learning होगी. They'll be able to adapt to a scenario, they'll be able to adapt in an environment जहाँ पे, because the robot है उसको feel ना, उसकी कोई feeling है ना, उसको पता है उसके सामने जो आदमी है सिनारियो क्या. मैं एक बंदा है, एक ह्यूमन बीइंग है,
100 तरह के सिनारियो होते हैं. फ़ोन पे आप बात करें, आपको पता नहीं है कि हाउ ही स्पीकिंग, हाउ ही लुक्स लाइक एंड क्या फीलिंग है उसकी. रोबोट इज़ लाइक दैट, ठीक है, एज इफ़ और बेसिकली. लेकिन अपने एल्गोरिदम्स को चेंज करने की एबिलिटी AI में है. हमने उसको इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है. लेकिन द मोर एडवांस यू गो इनटू इट, या जो मिलिट्री में अभी भी एग्जिस्ट करती है, देयर आर कपल ऑफ functionalities and there are few scenarios where once you program a robot, it's self-changing, ठीक है. तो ऐसा भी टाइम हो सकता है जहाँ पर AI humans की हेल्प करने की बजाय humans की दुश्मन बन जाए, and there is no way of you controlling it. जैसा कि आपको डूम्सडे की मूवीज़ में दिखाते हैं, some of that we even see today. लेकिन जब स्पेशली जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू डू दोज एक्सपेरिमेंट्स इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. तो इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स समटाइम्स स्केयर अस, द थिंग्स दैट अ रोबोट कैन डू. बेसिकली रोबोट तो हार्डवेयर है, द थिंग दैट अ सॉफ्टवेयर कैन डू, और जो सॉफ्टवेयर आप जिस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं वो कैसे उसको होल्ड करके कैसे चेंजेस ला रहा है. इसमें दो चीज़ें हैं. इसमें एक तो ये है कि यार ये एक वेपन है, right? And that weapon can be used by good actors or bad actors. एक तो ये है कि यार weapon is it's like nuclear, right? So devastating that if in the hands of a bad actor could potentially unleash a massive amount of damage to to the society. Again, nuclear. एक दूसरा ये है कि यार good actor or bad actor, it might just turn on humanity. ठीक है. अब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क उसमें यह आता है कि एक ये बात है ना, या मैंने वेपनाइज्ड ड्रोन्स बना लिए और वेपनाइज्ड ड्रोन्स को मैंने कंट्रोल किया हुआ है, बट सम टेररिस्ट ग्रुप्स हैक इट एंड दे यूज इट फॉर देयर ओन नेफारियस पर्पसेस. इट्स ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, एंड द वेपन इज अ वेपन. बट देन मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैंने वो बनाया हुआ है, और फिर मैं सडनली उसके अंदर सेल्फ थिंकिंग ऐसी आ गई है जिसके अंदर उसका जो मिशन स्टेटमेंट है, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट इज़ वेयर इट्स एट, तो मिशन स्टेटमेंट ऐसी आ गई है जिसपे वो कहता है कि ह्यूमैनिटी इज़ द एनिमी ऑफ लेट्स से अर्थ, एंड आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट. उसके अंदर मुझे सिर्फ ये होता है कि AI as a centralized engine, until and unless you begin to create a super intelligence that is top down and works as a hub and talks about the bigger questions, individual weapons may not be able to do that, right? So एक programmable autonomous drone है जिसके अंदर जो self learning की ability है वो ये है कि how do you target, उसकी लर्निंग बेहतर हो रही है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, बट उसको लार्जली इनपुट हमेशा दी जा रही है. उसके पास कोई थॉट नहीं है कि उसकी मिशन स्टेटमेंट का बड़ा पर्पस क्या है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. यस, एक एवरेज फुट सोल्जर होता है ना, तो एवरेज फुट सोल्जर को ये दिया जाता है कि यार तुम्हारा ये मिशन है, इस मिशन में तुम जाओगे, जाके तुमने इस बंदे को, इस टेररिस्ट को या इस उसको एनिमी उसको उड़ाना है, ठीक है. उस पर वो सेल्फ लर्निंग उसकी इतनी है, इंटेलिजेंस के, वो कहता है कि इस बंदे को उड़ाना है, कुछ वेग सी मेरे पास वो है, तो ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, तो उसमें दरमियान में वो कर सकता है. बट इट्स एट द टॉप ऑफ द एंटायर वो कि एक जनरल होगा जिसको बिग पिक्चर पता होगी कि हमने इस मिशन से बिगर पिक्चर में क्या अचीव करना है. इन द एब्सेंस ऑफ सुपर इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हेयर, इस पे वो इम्पैक्ट, दिस कैन नॉट टर्न अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस कैन टर्न अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बिकॉज इसका मेजर जो सुपर इंटेलिजेंस है, अगर उसके अंदर लीडिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस डील हो रहे हैं जिसके ऊपर वो कर सकते हैं. डू यू गो व्हाट आई एम सेइंग? एब्सोल्युटली. सो उस केस में आई फील लाइक देयर आर इनफ फेल सेफ्स दैट कैन पोटेंशियली बी बिल्ट अक्रॉस दैट. डोंट यू थिंक? वी थिंक एज ह्यूमंस हम फेल सेफ रख सकते हैं, जितने चाहे हम रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये कंसर्न है और मेरा ये बिलीफ है कि फ्यूचर में रोबोट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, क्योंकि अभी तो बहुत स्टार्ट है हमारे AI का, ठीक है, जो अब जितना हम सीख चुके हैं, जब वो डीप लर्निंग कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स जस्ट द बिगिनिंग. आगे आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ने फुट सोल्जर की बात की है. हम एक रोबोट, एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करें, एक एल्गोरिदम डेवलप करें जो कि हम लोग रखें कि जी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एयरपोर्ट्स के पास हम कोई ऐसा रोबोट डिप्लॉय करें कि भाई यू हैव टू शूट द बर्ड्स आती हैं, प्लेन क्रैश होता है, इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है,
ठीक है, या फिर वट एवर इफ़ देयर इज़ एनी बुश फायर, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर का बड़े प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बुश फायर हो रही है, बुश फायर को कंटेन करना है, क्यों कंटेन करना है कि ये ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब वो रोबोट AI के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपने सिनारियोस चेंज कर सके। अब देयर कुड कम अ टाइम, वो रोबोट आर्म्ड है, ठीक है, इट एलिमिनेट्स एनी टारगेट दैट इट फाइंड्स वनरेबल। अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ह्यूमंस भी फायर्स कॉज करते हैं, जानबूझ के फायर लगा दी, ठीक है। नाउ इस रोबोट के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, इतने फील नहीं है कि समझ सके कि ये इंसान है और इस इंसान को छोड़ दो, उसने गलती कर दी, नहीं। फॉर दैट रोबोट इट्स एन इफ और उसने देखा कि भाई ये जो इंसान है इसने भी बुश फायर कॉज की है और ये एनवायरनमेंट डैमेज किया है, और मेरा जो रोल है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, बुश फायर को एलिमिनेट करना है। इसके हाथ में मोलोटोव कॉकटेल है और उसने अभी फेंकना है और ये फायर लगेगी, और ये तो बेसिकली दैट रोबोट विल शूट दैट ह्यूमन एंड इट हैज़ नो रिपरकॉशंस। कोई उसको फील नहीं होगा कि ये आदमी मर जाएगा, इसकी फैमिली है, ये चीज़ें। एंड दैट्स वेयर आई सी रोबोट्स एंड AI टर्निंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसको जब उसकी एक टारगेट है जो आपने प्रोग्राम कर दिया, देखिए वेपन तो ये है ना कि एक गन है मेरे पास, मेरी गन है, मैंने अपनी प्रोटेक्शन कर रखी, आपने स्टील करके मुझे शूट कर दिया, दैट कैन हैपन एनी टाइम। वो तो आज भी हो रहा है, मतलब क्यों लोग वो वेपन्स, वो मास डिस्ट्रक्शंस के पीछे भागते हैं लेने के लिए कि भाई इसके पास ये फायर कर देगा। लेकिन रोबोट वंस इट टर्न्स रोग, वो अपनी एल्गोरिथम्स पे चल रहा है और एल्गोरिथम्स पे इवॉल्व कर रहा है। अभी ये कि जो रोबोट्स हैं उसमें जो हमने कंप्यूटर्स फिट किए हुए हैं, जो थिंकिंग पावर है वो कम है। टॉक अबाउट सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो अभी जो उनकी कैपेसिटी है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चिप्स, माइक्रो चिप्स हो रही हैं, SD कार्ड्स की क्वालिटी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ रही है और साइज़ कम हो रहा है। देयर विल सून कम अ टाइम जब आपकी प्रोसेसिंग पावर उन रोबोट्स के लिए भी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एल्गोरिथम्स, मिलियंस ऑफ एल्गोरिथम्स एट अ मिली सेकेंड वो प्रोसेस करेंगे, और उसमें जो है वो ये नहीं देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, वो देखेंगे हमारा एक पर्पस है टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ, लाइक यू सेड, प्रोटेक्ट द अर्थ। उसके दुश्मन कौन कॉज कर रहे हैं? ह्यूमंस, या पोल्यूशन फैला रहे हैं ह्यूमंस, ये कर रहे हैं ह्यूमंस, कार लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे को शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो दे विल टर्न अगेंस्ट अस। That's where I see it. Do you think we're again, this is ये जो scenario है, ये बड़ा sci-fi scenario, and historically even through books, and humanity tends to write about the worst case scenario. It's a good food for thought and we tend to build fail safes around it. But मैं इस scenario को flip करता हूँ, और मैंने एक evolutionary computing पे course लिया था back in university, और उसमें हमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था on how we think AI is going to impact, or rather evolutionary computing is going to impact the human society, and my argument in it was that the biggest weakness, I mean, it's not necessarily something that I believe in, it's just something that I argued for. My argument was that the biggest weakness in humans as a super species is basically our emotions, and it's our emotions that, while they give us the best abilities in lieu of love and in lieu of empathy and in lieu of all of those, it also brings the worst side in us as well, through anger, through jealousy, through so on and so forth. And more often than not, it is emotions that leads humanity to break peace continuously and kill and maim and destroy civilizations and enrich the rich and so on and so forth. In a perfectly egalitarian society, in the absence of emotions, you will eventually begin to reach inherent equality in the quality of life across all spectrums of your society. And so what I argued was that the next super species will emerge that will have emotions absent. Us context mein, when I began to study the human society later on, and even today, I'm a big student of policy and governance and all of that. Sometimes I do feel like that maybe 50 to 100 years from now, our governments might just be replaced by artificial intelligence,
that are guided by humans, but you don't need a prime minister making decisions based on emotions. Because अगर तो डेटा गेम है ना, अगर तो हम कहते हैं कि हमारे लीडर को सोशियोपैथिक होना चाहिए और उसको जो है वो he need to do the what's best for the majority, तो उसको रिप्लेस करना with an artificial intelligence that has infinite data inputs and can take the most transparent and efficient decisions. Because even दुनिया का अच्छे से अच्छा प्राइम मिनिस्टर लगा दें, आपको नहीं पता कि उसको कौन प्रेशराइज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. ऑन द अदर हैंड आप एक AI को फाइनल डिसीजन मेकर बना दें, तो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट कि एग्जैक्टली उसको क्या इनपुट्स आई थी, उसकी बेसिस के ऊपर उसने क्या डिसीजन लिया, और वो इम्पार्शल है और वो डेटा ड्राइवन है. डू यू थिंक we will potentially go towards a time where हम जिस तरह बिल्ड करते हैं ना कि द AI will destroy us और we will be the slaves to an AI, हम इस तरह बिल्ड करते हैं कि हम उसको फाइट करेंगे लेकिन वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आके हमें टेक ओवर कर लेगी. मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंट स्पेस नज़र आ रही है जिसमें हम इनवाइट करेंगे उसको और हम उसको इनवाइट करके अपने ऊपर इम्पोज करेंगे और उस इम्पोजिशन की वजह से हमें इनिशियली बहुत अपसाइड नज़र आएगी और अपसाइड मिलेगी. But you let it happen for 100 years and then some human will come out and he'll be like, यार ये तो AI चला रही है हमें, right? Yes. That's an outcome that I see as much more likely. जिस तरह आज है ना कि आज लोग उठते हैं और कहते हैं यार capitalism is great, it's created incredible value and it's been able to create incredible wealth and productivity and innovation, but inherently we're all slaves. राइट हमारी नौकरी लगी होती है, वही नौकरी हमारी हेल्थ डिफाइन करती है, वही एजुकेशन डिफाइन करती है. आप लाइन से थोड़ा सा आउट होते हो, यू आर स्क्रूड. डेफिनेटली. सो डू यू थिंक कि हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ पोटेंशियली जाएंगे जहाँ पर AI will be at the core of our decision making and we will just follow what the AI commands us to do? आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो हम तो जन्नत में रहेंगे. फिर ये जन्नत बन जाएगा ना ये दुनिया, क्योंकि ह्यूमन हमेशा कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़. मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आप भी रिलेट कर सकेंगे और ऑडियंस भी. आप कह रहे हैं कंट्रोल की बात करें, ठीक है. ये देखिए मोबाइल फ़ोन आया था 10 साल 20 साल पहले आया था. अभी हमने इसको इनवाइट किया अपने घर में, किया था ना, बहुत शौक से हर बंदे आज भी लेता है. मोबाइल फ़ोन लिया, इसमें कैमरा भी है, इसमें रेडियो भी है, हर चीज़. हम उसकी पॉजिटिविटी, जब भी कोई लड़का लड़की अपने घर से लड़ता है ना माँ बाप से, मोबाइल फ़ोन क्यों लेना है, सारी पॉजिटिव बातें बताता है कि ये इस तरह मैं कॉलेज से आऊँगा, हम कॉल कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है. यू नोटिस वी आर स्लेव्स टू दिस. हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो गए. हमें सुबह उठते पहला फ़ोन उठाते हैं, इसके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता. अब इसमें से कुछ लोग हैं जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. शायद कुछ सक्सेसफुल भी हो गए होंगे, बहुत कम. majority of us are slaves. तो जहाँ पर ये हमें फ़ायदा दे रहा है, ये हमारा दुश्मन भी बन गया है. कैन यू एलिमिनेट दिस? यू कांट. आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है. आपका मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा. हम तो इसके बगैर रह नहीं सकते. हमारे कम्युनिकेशन की सिर्फ बात नहीं है, हमारा पूरा कारोबार, हमारा घर ही इस मोबाइल फ़ोन पे चल रहा है, ठीक है. अभी इसी तरह आप बात करेंगे जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप कह रहे हैं कि जी इस तरह का कोई रोबोट या कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा फ्यूचर में जो कि प्राइम मिनिस्टर्स को रिप्लेस करेगा. नहीं, देयर विल ऑलवेज बी अ वॉर बिटवीन दोज टू. कुछ पार्टीज़ होंगी जो इसके फेवर में होंगे कि भाई जिस तरह हम कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, ठीक है. सेम थिंग. There are people in favor जो कि पॉजिटिव बताते हैं. There are people that talk about the negative side कि भाई हैक हो सकता है. एक बंदा बैठ के पीछे, there are Russian hackers, so many other people that can do the whole thing for you. आपको पैसे लगाने की दे रहा है. तो what I see is yes, AI make future किसी को नहीं पता, लेकिन the way technology is going, AI may control human beings. और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा AI कंट्रोल करेगा. Beginning मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, आगे आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर और अब डेवलपमेंट होगी. आपके अब देखें हमारे लोग ChatGPT देख लें कितने रिलाई कर रहे हैं. मैं आपको गोरों की बात बताता हूँ. आपके जितने भी जो लोअर क्लास आपके वर्क फोर्स है ना, IT की बात करें, अकाउंटेंट, दे ऑल यूज़ ChatGPT. दे यूज़ फ्री वर्जन पर ChatGPT. भाई कोई सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और सेटिंग ऑन, तो अपना ब्रेन यूज़ करना छोड़ दिया. हमने किस चीज़ के लिए AI डेवलप की थी और हमारे लोग जनरल ह्यूमन बींग्स किस तरफ जा रहे हैं. तो जितना वो लेज़ी बनते जाएंगे
اس کی عادت پڑتی جائے گی, اینڈ they will want more, they will want people like us کہ اور ڈیولپ کرو, ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرو جو ہمارا زندگی کا صبح ہم اٹھیں اور رات کو سوئیں, ہمیں کوالٹی آف لائف چاہیے. لیکن what are you sacrificing for that? Sooner or later you're gonna be slaves to those robots جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں, جو آپ کے ڈیوائسز میں آپریٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے ہیلتھ ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں. اینڈ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب آپ اس کو چاہ کر بھی اپنی لائف سے eliminate نہیں کر پائیں گے. اینڈ that's where I see that war between humans and robots so called will begin. اچھا, میں تھوڑا سا نا conversation کو flip کروں گا. I'm going to wrap this up as well. We're at the 2-hour mark. But I want your thoughts on normally I don't do this on the show, but I've always been intrigued by the idea. Have you ever thought of Dajjal or Antichrist or ہماری جسے کہتے ہیں نا اسلامک میتھولوجی میں بھی یہ بڑے ایکٹیو کیریکٹر ہیں, پر اسلام میں نہیں ہیں, کرسچینٹی میں بھی ہیں, جوڈیزم میں بھی ہیں. Sometimes when I think about AI, and I'm a big proponent of AI generally, but I feel like if you were to look at Antichrist in the way that it was described, it was the one eye that could see everything, initially would come in, would raise people from the dead, would be very useful, would give you a lot of luxury and so on and so forth. And then eventually you realize کہ actually وہ جو بھی آپ کو دے رہا ہے وہ fake ہے. That's what the folklore says, right? کہ وہ جو healthy کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ actual میں نہیں کر پا رہا, وہ جو ہے وہ آپ کو صرف it's a facade. When I think about AI and the miracles that it's now being popularized as to perform potentially, do you ever feel like we're now going towards a time where potentially this could be that moment, that Antichrist, that Dajjal for us, where it's AI inherently is this one central intelligence that can see everything, listen to everything, اور یہاں پر آپ کو پھر, اور یہ مجھے particularly it's a very interesting food for thought for you, but recently now when I went to Dubai, and I'm a through and throughout capitalist in terms of jo productivity and the efficiency that increases from that, میں بہت سپورٹ کرتا ہوں اس کو. But when I went to Dubai, I realized کہ in that concrete jungle of massive development and amazing infrastructure, when you go around and when you see people, you find them to be inherently unhappy. All they're doing is they're in this rat race of constantly wanting bigger cars and better curtains and bigger brands and so on and so forth. And you're just like, اچھا ہم نے ایز ہیومنز ہر قسم کی لگژری بھی بنا لی, ہم نے ہر قسم کی ویلتھ بھی بنا لی, ہم نے وہ کر دیا, لیکن ان دا پروسیس ویو بیکم سلیو ٹو دس ویئرڈ سائیکل ویئر جو ہیپینس تھی نا وہ ہمارے سے چھین لی گئی, رائٹ. اینڈ لارجلی آپ ڈیولپ ورلڈ میں جائیں, کیپٹلسٹک انوائرمنٹس میں جائیں, تو وہاں پہ ہیومن سے الگ ہو رہے ہیں, وہ آئسولیٹڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, لونلی ہونا شروع ہو گئے ہیں, ڈپریسڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, مینٹل ہیلتھ کا ایک فقدان ہے پورا ان سوسائٹیز کے اندر. تو سملرلی مجھے اے آئی سے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایز دس آل سیئنگ آئی دیٹ از گوئنگ ٹو گیو اس میسو اماؤنٹس آف میریکلز, maybe that might just be the downfall of humanity as was predicated within the sort of religious mythology as well. What do you think? I think, look, جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اے آئی کی, تو یہ obviously I'm not a scholar, لیکن definitely I listen to a lot of scholars, اور majority scholars کی combined thought یہ ہے کہ the time is near, ٹھیک ہے. اور جہاں میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ دس از دجال, obviously بکس میں ریٹن ہے کہ دجال از اے فزیکل بینگ, لیکن دس از ڈیفینیٹلی ون آف دا بگیسٹ ٹول سیٹس آف دجال جو وہ استعمال کر رہا ہے یا کرے گا. جس طرح سے آپ دیکھیں نا سوسائٹی ہماری بنتی ہے, ہماری اپنی فیملی سے, اپنے بچوں سے, گھر سے نکل کے پھر سوسائٹی بنتی ہے, تو اس طرح سے کیپٹل ہو رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کمانے کی, بڑی گاڑی لینے کے دوڑ میں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے دوڑ میں چل رہا ہے, تو اپنی فیملی کو بھی وہ جو ہے وہ سیکریفائس کرتے ہیں. اس میں میری اور میری وائف کا آپ اس میں یہ کمٹمنٹ ہے کہ
کہ شی از اے ہاؤس وائف. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو ہابی کے لیے کام کرے گی. میں مرد ہوں, میں گھر کا سب کچھ دیکھوں گا, سب کچھ میرے کرنا, تاکہ میری بچوں کو ایک مدر ملے, ٹھیک ہے, ان کو ایک سپورٹ ملے تاکہ وہ بلی ہوں تو ماں کے پاس آئیں. تمام چیزیں جو کہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ماں کام کرتی ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, صبح وہ جاب کرے گی, وہ آئے گی, وہ کیسے ٹائم دے گی سب کو. تو آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون, مجبوریاں الگ سے ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں گیمنگ کا بہت شوقین ہوں. میرا پارٹ ٹائم جو ہے, جب میں ٹائم ملتا ہے, ہابی میری گیمنگ ہے, اور اچھی وی آر گیمنگ میں کرتا ہوں. آپ دیکھیں ارتھ 2.0 اس طرح کی بہت سی گیمز آئی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ بیسیکلی آپ وہ چیز افورڈ نہیں کر پاتے دنیا میں جو کہ آپ ورچولی افورڈ کر پاتے ہیں. ورچوئل لینڈ میں جو بچوں کو زیادہ یوتھ ہماری اس سے ریلیٹ کر پائے گی, آپ کی اپنی دنیا ہوتی ہے, آپ اپنے ایک رجیم, اپنی ایک ایمپائر بناتے ہیں, اینڈ یو آر دا کنگ آف دیٹ ایمپائر. آپ کے فراری آپ نہیں افورڈ کر سکتے فزیکل, لیکن آپ کے پاس وہاں پہ 10 لیمبورگینیز اینڈ فراری کھڑی ہوں گی. یو ول انجوائے دیٹ. سو وی گوئنگ ان ٹو دیٹ ایرا جہاں پر ایوری تھنگ از ہیئر. کہ انسان دماغ جو ہے نا, اگر وہ یہ چیز سیٹسفائی ہے تو آپ سیٹسفائڈ ہیں, آپ کا برین ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی بھی ٹھیک چلے گی. تو اب یہ ہے کہ ہر چیز ورچوئل اے آئی کی طرف جائے گی, اور بلکہ جا رہی ہے, جو کہ اب پاکستان کی طرف بھی آنے والی ہے, کہ جہاں پر ہمارے بچے, ہماری یوتھ, ایون مڈل ایج باہر جا کر گپ شپ لگانے میں, کرکٹ کھیلنے میں, اسپورٹس میں ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. اب وہ گھر بیٹھ کر وہ تمام چیزیں کریں گے جو ان کو اچیو کرنے کا دل ہے لیکن نہیں اچیو کر پا رہے, یہ کر نہیں سکتے. تو ٹو کمپیٹ دے ہیو ٹو سیٹسفائی دیئر مائنڈ اینڈ دا وے دے ول ڈو اٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں دجالی ایک ٹول سیٹ ہے, آپ کو وہ ہر چیز دے گا جو کہ آپ کے دماغ کو لگے گی کہ میں سیٹسفائڈ, لیکن ان ریالٹی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی لمٹ نہیں ہے. مطلب آپ کو 10 محل چاہیے, 20 مینشن چاہیے, آپ کو پورا ایک پلانٹ چاہیے, یو کین بائی دیٹ, لیکن اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو یہ اس طرف ابھی ہماری اے آئی جانے والی ہے, اینڈ آئی اگری ود یو آن دیٹ کہ دس از, آئی بلیو دس از اے ہیوج ٹول سیٹ آف دا جال. کہ ابھی دیکھیں رین کنٹرول ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل رین ہو رہی ہے, ویدر کنٹرول کیا جا رہا ہے, آپ کی ایگریکلچر کی طرف کتنا کنٹرول ہو رہا ہے روبوٹکس کے تھرو. آپ کی فرٹیلائزر تو ایک پارٹ ہے نا, آپ کی گروتھ کو امپروو کرنے کے لیے جو روبوٹس کام کرتے ہیں, ایون اس طرح کے اے آئی روبوٹس ہیں, دے اونلی پٹ فرٹیلائزر ایٹ اے اسپاٹ جہاں پہ ضرورت ہے. تو زیادہ پروڈکٹیوٹی, لیس ویسٹیج, اور جو آپ کی جو ویڈز ہیں آپ کی وہ وہاں پہ ختم کرتا ہے جہاں پہ آپ کے پلانٹ کو افیکٹ ہی نہیں ہوتا. تو بیسکلی دس از ویئر the Dajjal is gonna lead us. Interesting. I'm going to wrap this up. I'm going to ask you one last question that I ask all of my guests. You've been in Australia for 15 years. Before that, you were in Peshawar for most part. Yes. You do visit Pakistan every now and then? Every couple of years. Yes. How do you see Pakistan in another 27 years' time, in 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen of the world? And I want you to answer this just with the data that you have available, without any ifs and buts کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا. Just see what you see in Pakistan. And اگر آپ اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو آپ کو کیسا دکھ رہا ہے پاکستان 27 سال بعد کا؟ اگر میں فورکاسٹ کروں پاکستان کی سچویشن, اسٹارٹنگ فرام اے ہیومن بینگس, لوگ کس طرح کے ہوں گے, دیر بی ویری مٹیریلسٹک. جس طرح سے ابھی پاکستان جا رہا ہے اور فیوچر میں جو حالات ہونے والے ہیں, ہر انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو شو کرے گا. اندر سے ہم نے ایک اسٹوری پڑھی اوور کوٹ کی, اندر سے وہ از ٹوٹلی کھوکھلا اینڈ ایمٹی, باہر سے از اے ملینئر. ٹھیک ہے, تو ہر انسان اب پاکستان میں فیوچر میں یہی ہونے والا ہے کہ آئی وانٹ ٹو لک بیٹر دین مزمل, آئی وانٹ ٹو لک بیٹر دین مائی کزنز اینڈ مائی فیملی, اور اس کے لیے میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں گا. دس از ویئر دا سوسائٹی از لیڈنگ. تو یہ تو ہوگی. اور لوگوں کی بات اب دیکھیں, لاسٹ ویک جو ہے میں آئی لو ٹو ٹریول ان رکشاز, مجھے رکشاز بہت پسند ہے. آئی واز سٹنگ ود رکشا, اور میں اس بندے سے بات کرتا ہوں کہ کیسی سچویشن ہے پشاور کی. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے گھر مہمان آیا ہوا ہے 2 دن سے, میں پریشان ہوں. پشاور پٹھانس یہ فیمس ہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے, لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں افورڈ کر پا رہا یا وہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو اتنی سیلفشنس ہو جائے گی کہ آپ ایک دوسرے کو افورڈ کرنا چھوڑیں کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. دیٹس فرام اے ہیومن سائڈ. کریئر وائز ہماری جابس کی بہت کمی ہونے والی ہے, اس لیے کہ یہاں پہ ہر بندہ نوکری کرتا رہتا ہے, اور ڈگریز, فیک ڈگریز بڑھیں گی. ایجوکیشن جو ہے وہ جسٹ فار دا سیک آف ایجوکیشن رہے گی. آپ جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے, جس طرح ابھی بھی چلتا ہے, پر ایکسٹریم. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو یو آر ایجوکیٹڈ,
अब आगे ये होगा कि यू विल डू डॉक्टरेट, PhDs, मल्टीपल PhDs एंड यू मे नॉट बी कंसिडर्ड एन एजुकेटेड पर्सन. कंपटीशन बढ़ेगा. साथ साथ जो है आपकी जो मिडिल क्लास है, दे गोना बी नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्यूचर. दे टोटली, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी ही टोटली फेक सर्कल में घूम रही है. आप लोगों को खुश करना, बेटे की शादी पे खर्चे करना, गाड़ियाँ ऐसी लेना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सेविंग कोई नहीं है, इनकम आ रही है तो बस वो खाते जा रहे हैं, कर्जा लेते जा. तो दे गोना बी नॉन एग्जिस्टेंट. जो गरीब है तो आज भी रो रहा है, कल भी रोता रहेगा. And the elite, they're gonna enjoy the life in Pakistan. That's where life will be for them. क्योंकि आप मिडिल क्लास ख़त्म कर रहे हैं. वो तमाम लोग जो आज जाना चाहते हैं ओवरसीज़, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट 5 years ही है. मार्क माई वर्ड्स. जो अभी हम देख रहे हैं इमिग्रेशन, नेक्स्ट 5 years में ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपनी इमिग्रेशन चेंज करना शुरू करेंगी. ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन, आपकी जो है वो ओवर स्किल सेट्स जो कि अभी रिडंडेंट होने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें इनको हिट करेंगी. एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग पीपल फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हैं किन कंट्रीज़ के साथ? इंडिया is right next to you. You want to believe it or not, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, it's your problem. लेकिन फैक्ट ये है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं. जब बात आएगी आपकी और उनके बीच में, those people will, first of all, जॉब्स इतनी नहीं होंगी, AI will be in the market, और जो होंगी वो आपसे ले लेंगे. तो you need to really work hard and start focusing on the long term goal. अभी से ये छोटे मोटे जॉब्स और छोटे मोटे बेनिफिट्स को देखना छोड़ दें, लॉन्ग टर्म प्लान करें. इसलिए कि आगे फाके पड़ने वाले हैं, आगे जॉब्स की कमी होने वाली है. तो अगर अपनी और अपनी फैमिली की और इवन पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करना देखना चाहते हैं, तो यू नीड टू प्लान इन एडवांस. Makes sense. Nabeel, thank you so much for coming in and sharing all that insight. You have an incredible story, and I hope you can do more incredible things in Australia, particularly in the space of AI. Thank you so much for coming. Thank you so much for the insight. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं what do you think about everything that we've discussed. AI, the future, negative aspects of AI. Education, Pakistani skill set, migration in the future particularly. There are many multiple opinions on that. How do you see that panning out? Let me know in the comment section below. But anyways, this was Muzamil. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.